सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन के लिए फिर पिछले तमाम सेशंस की तरह पूरी उम्मीद होगी और एक तरीके से वी विल बी हैविंग अ न्यू स्टार्ट फ्रॉम दिस सेशंस। आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, शी इज मिस आयजा जफर। शी इज एन स्कॉलर along with a water specialist. Miss Aiza Zafar is an environmental scientist, also a climate advocate who has empowered over 200 individuals and contributed to achievement advancements along with achievements in sustainable water management through her research. और एक और चीज मैं अपनी साइकिल सफर की बताना चाहूंगा, शी इज ऑल्सो माई सीनियर, सो यस आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। हेलो मैम, ओवर टू यू। Assalamualaikum everyone. Thank you, Danyal, and I am really honored, and I thank Burak Association for giving me this opportunity for educating so many young people. First of all, please confirm, can you hear me clearly? यस मैम, वी कैन क्लियरली हियर यू। Okay, so thank you. So today's session is about sustainable development goals. I think most of you are aware of sustainable development goals and the 17 sustainable development goals, but we will talk specifically today about SDG 6. Should I start the presentation, Daniel? यस आप स्टार्ट कर सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन। Okay, so let me share the screen. Okay, so I think you can see my screen. So here it is, water wisdom, unlocking the power of SDG 6. So my name is Aiza Zafar, and I'm an environmental specialist, an environmental scientist, and an expert researcher. I wouldn't say an expert, but a keen researcher in the field of water research. So my specific research field is wastewater treatment. So today I'll be talking about SDG 6, which is clean water and sanitation. So first of all, let's see what are SDGs. So SDGs are Sustainable Development Goals, which were adopted and provoked by United Nations in 2015, which encouraged the entire world to accomplish their sustainability goals and poverty eradication by 2030. So our goal today is Goal 6, Sustainable Development Goal 6, that ensures that all human beings on this planet Earth, all living beings actually, have access to clean water and adequate sanitation services. Clean water means that the water quality is up to the mark, all parameters are up to the mark, and sanitation services means that their hygiene and all other practices which are related to the waterborne diseases and other things should be managed properly. So first of all, we will see that the overview of, sorry, what? अभी मेरे ख्याल से स्लाइड शो ऑन नहीं है। वी आर एबल टू सी जस्ट वन द टाइटल स्क्रीन। Okay, let me share again. Now, can you see the slides passing by? Tanya, please confirm. Slides आगे जा रही है? Nope, still stuck on introduction. Okay. Can you please confirm now? Yes, आप clearly आगे पीछे जा रही हैं, clearly moving. Okay, sorry. So this was the second slide in which the introduction was given about SDGs and the goal 6 of SDGs.
So let's intersect SDG 6. For accomplishing SDG 6, UN has divided it into six parts, six targets, to make it more accountable, more accomplishable, and more transparent. So SDG 6 has been divided into six parts. The first target is safe and affordable drinking water. Second is clean sanitation, access to clean sanitation and hygiene, and open defecation, which is a common issue and in African continent and South Asia. Improve the water quality, which is wastewater treatment and wastewater management. Then there is increase the water use and efficiency and ensure the fresh water supplies, which also inculcate the freshwater all the resources, freshwater resources in it as well. And then we have integrated water resource management, which is a government part, governance part, which will inculcate the policy, regulations, etc. And then we have protect and restore the water related ecosystems, as SDGs don't just include humans, they are targeted for all living beings. So in every SDG we have a target which specifically focuses on the other organisms, on the well-being of other organisms as well. So SDG 6, potential of SDG 6, why we should explore SDG 6 and what needs to be explored in SDG 6. So first of all, for accomplishing this goal and for achieving each target, we need a lot of data and information. And by integrating that data information, we can develop the capacity to cater the issues related to water. And then we need a governance intervention and innovation to make sure that to make sure the availability of clean water and ensure sanitation. And for all these purposes, for starting from data collection, capacity building, innovation and governance, we need finance. So finance is the main factor which drives the entire SDG accomplishment, and every year, every developing country, every affected country of climate change gets a lot of financing, including Pakistan, for combating these changes and accomplishing their SDG goals. So then why SDG 6 is important? So let me make this session more interactive. I am just talking. So I will ask you guys. उसमें ऐसा लग रहा है कि आपने स्पीच लिखी हुई है और आप उसको पढ़ी जा रही हैं, रीडिंग करी जा रही हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा. So let me just okay. So SDG 6. So मैं इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाऊंगी. Let me switch to Urdu and I will say कि आप लोगों में से कोई मुझे बताए कि SDG 6 की इम्पोर्टेंस क्या है. Anyone? Bushra, please unmute yourself and tell me what is the importance of SDG 6. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. बेसिकली देखें, अगर कहा जाए तो साफ़ पानी पीना, अगर हम पीने से ही शुरू कर लें तो ये एक बेसिक राइट है हर किसी का. तो एटलीस्ट उसको इस्तेमाल करने के लिए या पानी पीने के लिए जो है वो साफ़ पानी मुहैया किया जाए. और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जैसा कि हमें पता है कि SDGs सारी जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं. तो देखें, अगर हम गंदा पानी पिएंगे या गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी सेहत ख़राब होगी. सेहत ख़राब होगी तो हम जो है वो एजुकेशन भी नहीं हासिल कर सकेंगे उस तरह से. ऑब्वियसली जब हम बल्कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे, पॉवर्टी वहीं की वहीं रहेगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इससे इफ़ेक्ट होंगी. सो इट्स एन इम्पोर्टेंट SDG. सो And what do you think Sorry? this is this the most important SDG of all?
कह सकते हैं कि ये एक क्योंकि देखें ये हेल्थ से और एजुकेशन से, पॉवर्टी से, जो कि मेन गोल्स हैं, ये उनसे बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसलिए जो है ये इसके लिए एक्शन लेना भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ चाहता है। सो इसलिए ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एसडीजी मानी जाती है, और मेरे लिहाज से तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बाकी आप बता सकती हैं सही। एसडीजी 6 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है तमाम एसडीजीज के ऊपर। अगर ये एसडीजी 6 हम एकम्प्लिश ना करें तो हमारे सारे जो एसडीजीज हैं वो हम पूरे नहीं कर सकते। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर एसडीजी 6 एकम्प्लिश ना हो तो हमारे पास एसडीजी 14 है, लाइफ बिलो वाटर, जिसके अंदर सारी इकोसिस्टम्स आ जाएंगे, इक्वेटिक इकोसिस्टम्स आ जाएंगे। सो वो एकम्प्लिश नहीं होगा अगर हमारा एसडीजी 6 एकम्प्लिश नहीं होता। सो इसलिए एसडीजी 6 इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारा हेल्थ का एसडीजी है, अगर हम एसडीजी 6 को कंप्लीट नहीं करते तो हमारा हेल्थ वाला एसडीजी भी पूरा नहीं होगा। तीसरा ये कि एजुकेशन का जो आपने बोला था ना, कि एजुकेशन एंड एसडीजी 6 आर वेल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है एसडीजी 6 को अकम्प्लिश करने में। सो ऑल्सो फाइनेंसिंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, और इसके अलावा हमारे एनर्जी रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट के लिए भी एसडीजी 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका पॉइंट ठीक था। लेट मी रीड द कमेंट्स एज वेल। अनुषा ने बोला एसडीजी 6 एंड Sustainable Development 6 focuses on clean water and sanitation that aims to ensure the availability and sustainable management of water sanitation for all. Yes. So 2030. So, what do you think? What Pakistan is doing in this regard for accomplishing SDG 6 till 2030? As 2025 is approaching, only 4 months, 3 to 4 months are left, and we all know that Pakistan had a deadline till 2025 that Pakistan will hit its worst water scarcity level in 2025, and till 2030 it has time to show something in front of the international world. Either it has accomplished in its SDG 6, its SDG goals or not. So what do you think that why SDG 6 is, what is the status of SDG 6? What is the status of clean water and water scarcity, and what's the status of the living organisms which are dependent on these water resources? And what should Pakistan do to accelerate the progress in SDG 6 to accomplish it till 2030? Anyone? Tanzeel. Yes, Tanzeel. Tanzeel, you can unmute yourself, please. Tanzeel, you can unmute yourself and answer the question. I think he's unable to unmute. So let's move on. Anyone else who want to answer that question? Yes, Bushra. जी बेसिकली आपने जैसे कि बताया कि इस पे डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान को, तो कुछ ओवरऑल पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन कुछ एरियाज़ में जो है वो इस पे काम हो रहा है। जैसा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस पे वर्क कर रही हैं, जिनमें एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट जो है वो सर फहरिस्त है, और ये डिफरेंट एरियाज़ में है फ़िल्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एटलीस्ट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो इवन दो अभी आज की बात है, आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस एसोसिएशन। सो अभी आज की बात है, हमारे एरिया में सर्वे हुआ है, मैंने खुद किया वो, और हमारे साथ वाले सिटी में जो है वहाँ पे फ़िल्टर्स लगवाए गए हैं,
और इस पे काम हो रहा है, हमारे इलाकों में तो हो रहा है, बाकी बड़े शहरों में इश्यूज़ साथ और भी हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज़ जब होते हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से पानी की क्वालिटी फिर से वहीं गंदी हो जाती है। और जो इसका मेन इशू हल इस तरह से किया जा सकता है कि लाइक हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम जो है ना उसको बेहतर किया जाए। बाकी जो मेनली इस पे वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, जो मेनली कर रही हैं वो मैंने आपको एक उसमें अपनी तरफ से बताया है। बाकी थैंक यू। Anyone else? In my view, जो surface पे cities हैं जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, not कराची, बट इस्लामाबाद, लाहौर एंड केपीके के कुछ प्रोमिनेंट सिटीज, उनके अंदर काम हो रहा है, इस्लामाबाद में काम हो रहा है, लेकिन these cities do not need such contributions. Rather जो cities दूसरे हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. I think they are the hidden, और क्या कहना चाहिए, जिनको अटेंशन नहीं मिलती, उन सिटीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए जो इन रिसोर्सेज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं और जो इन रिसोर्सेज के डायरेक्ट उसमें रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं. तो उन सिटीज या विलेजेस के ऊपर हमें नहीं, गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए. वाइल प्रोमिनेंट सिटीज इस्लामाबाद में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं फॉर providing the filters, for installing the filtration plants, for providing the water tankers in the houses. So rather other than this, the government should focus on the other cities and villages as well. Yes, Tanzil, you have raised your hand again. Yes, can you hear me now? Yeah, sure. Yes, I can hear you. अस्सलाम वालेकुम. मैं खुद कोयटा से हूँ और मतलब हमारी अपनी टीम भी है और हमने वाटर के जो मसले मसाइल है पानी के, ज़्यादातर उन पे काम करने की कोशिश भी की है बलूचिस्तान में जितने भी हैं. जाफराबाद में हमने ट्यूबवेल्स भी लगाए हैं और ये सारी चीज़ें. पर एक इश्यू है जो कि सबसे ज़्यादा शायद बाकी शहरों में भी है, वो वाटर टैंकर माफिया. और ये जो है ना सबसे ज़्यादा लोगों के लिए मसला है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो सबकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, और लोगों ने इसको ज़रिया माश बना लिया है. फ़िल्टर्स लगाते हैं, पैसे पे पानी बेचते हैं, जो पानी उनको मुफ्त में मिलता है. और यही इश्यूज़ सारी की सारी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है. अवारान साइड पे या फिर आप इंटीरियर बलूचिस्तान चले जाएँ तो वहाँ पे आपको एक ही पानी की जगह मिलेगी और वहाँ से जानवर भी पीते हैं पानी और साथ में इंसान भी वहीं से ही जमा करके पानी पीते हैं. तो यहाँ पे कुछ इस तरह के डैम्स बनाए हुए हैं जो कि सिर्फ पानी स्टोर करते हैं, लेकिन उससे पानी कहाँ जाता है कुछ नहीं पता होता. जैसे हन्ना झील के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत मशहूर है. वो भी वहाँ पे भी एक डैम लगा हुआ है, लेकिन वहाँ से पीछे से एक पाइप निकलती है और वो पाइप के थ्रू पानी वहाँ से बाहर निकलता है और वो कहाँ जाता है, किधर जाता है, ज़ाया हो जाता है. और बारिश का पानी आपका सारा का सारा यहाँ पे मतलब चला जाता है, ज़ाया हो जाता है. इनको स्टोर करने का कोई तरीकाकार कुछ भी, हम मतलब इतने अरसे से हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं नज़र आया हमें कि इसके बारे में कोई कुछ काम कर रहा हो या करना चाह रहा हो. ज़्यादा से ज़्यादा बस एक ज़रिया माश बना लेंगे, एक फ़िल्टर लगा लेंगे, अपना नाम रख देंगे और उसके बाद बॉटल्स भर-भर के लोगों को पानी बेचेंगे. तो इसके अलावा और कुछ नहीं नज़र आया. एग्जैक्टली ऐसा ही है. और जो इस्लामाबाद में भी टैंकर माफिया, इस्लामाबाद जो कैपिटल है, तो बलूचिस्तान के बारे में आई कैन इमेजिन कि ये हो रहा होगा. एंड ऑल्सो इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो अकाउंटेबिलिटी की है, बिकॉज आई नो एंड आई हैव द फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन कि बलूचिस्तान के पास इस चीज़ के लिए फंड्स भी आते हैं. एम आई राइट? फंडिंग भी आती है और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, हाँ, इस चीज के लिए फंडिंग आती है एंड इस चीज के लिए प्लान भी होता है. और यूएनडीपी इस चीज के ऊपर, बलूचिस्तान की इस किस्म की डेवलपमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है. बट ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लोकल जिसको कहते हैं कब्जा, उसकी वजह से ये चीज आगे बढ़ नहीं पा रही है. एंड इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, बिकॉज अगर हमारा मुल्क, ये सिचुएशन 50 इयर्स अगो भी सेम थी और अब भी सेम है. बस फर्क इतना है कि 50 साल पहले पानी की क्वालिटी थोड़ी बेटर होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड पुअर पॉपुलेशन मैनेजमेंट ये पानी
वक्त के साथ साथ डिटोरिएट होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सैनिटेशन एंड काफ़ी हेल्थ इश्यूज बलूचिस्तान में देखे जा रहे हैं. So this is quite unfortunate. Thank you, Tanzeel. And we have a comment as well. Ali Abbas has said that strengthen policies, regulations, and water enforcement for water management and protect and restore water. Yes, you're absolutely right. Yes, you are right, Muzna. Yes, CDA and जिसकी उस पे इजारादारी है हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर और वाटर कंपनीज के ऊपर, वो पानी प्रोवाइड नहीं करती है. इवन इन आवर सोसाइटी पानी का ग्राउंड लेवल में जो पानी है उसका वाटर लेवल ठीक है, बट दे आर नॉट गिविंग द सप्लाई वाटर. वो सप्लाई का पानी नहीं देते घरों में, रादर जो टैंकर्स होते हैं वो आते हैं, और एक टैंकर की प्राइस 3500 3,000 से 3500 में वेरी करती है. और वो टैंकर हर हाउस होल्ड के अगर हम देखे जाए तो हर 3 दिन बाद हर घर को टैंकर की जरूरत पड़ती है. सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी पीपल आर स्पेंडिंग ऑन for just getting the clean water, not for drinking purpose, but for the using purpose only. So let's get back to the importance of SDG. You guys have contributed well in the importance of SDG. So SDG 6 is really important as it is the basic human right, as Tanzeel and Bushra has added well that वहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, और साफ पानी पाना लेना और अपनी और बेसिक हेल्थ, बेसिक वेलबींग सारे ह्यूमन बींग्स का राइट है. और 2.2 बिलियन पीपल जो अक्रॉस द वर्ल्ड है उनको पानी जो है साफ पानी नहीं मिल रहा, एंड 4.2 बिलियन पीपल के पास sanitation services नहीं है. So SDG 6 not only just focus on clean water but also the sanitation practices. और जितने बच्चे हैं 3 लाख तक के बच्चे हर साल 3 लाख तक बच्चे हर साल पुअर सैनिटेशन और अनसेफ वाटर की वजह से मर जाते हैं, और जिसमें कॉलेरा और डिफरेंट स्किन डिजीजेस और डिफरेंट इंटेस्टाइनल डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस कंट्रीब्यूट करती हैं इन बात के. और 2010 में इसको एक क्लीन वाटर जो इशू है उसको एक ह्यूमन राइट इशू यूनाइटेड नेशंस ने करार दिया था. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके हेल्थ पे डायरेक्ट आउटकम्स हैं. So interconnection of the SDGs with other SDGs, as Bushra has contributed into it, कि जो हमारा SDG 6 है वो directly link है to all SDGs. अगर हमारा SDG 6 accomplish नहीं होगा तो हमारा poverty goal भी accomplish नहीं हो सकता. And also the poverty contributes to this. Poverty बहुत हद तक clean water की supply और accessibility में contribute करती है. So these two SDGs are interconnected कि हमें clean water देना है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, और पॉवर्टी को खत्म करना है क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी के लिए. एंड नो हंगर में भी इस नो हंगर इज आल्सो इंटरकनेक्टेड विद SDG 6, एंड आल्सो द मेजर SDG व्हिच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इट इज लाइफ बिलो वाटर. जो 6 हमारा टारगेट 6.6 है SDG का, वो फोकस करता है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और इस SDG 14 के ऊपर. सो आई हैव another question for you guys, why SDG 6 is further broken down into different targets. Anyone? And Bushra has added a comment कि हमारी educated youth and educated लोगों को ये नहीं पता कि ड्रिंकिंग वाटर का असल में मतलब क्या होता है. Yes, Bushra, you are right. ड्रिंकिंग वाटर साफ पानी, दे थिंक के साफ पानी जो नजर आता है जिसका कलर सिर्फ जो ट्रांसपेरेंट होता है या ज्यादा से ज्यादा जिसका टेस्ट सही होता है वो साफ पानी है, एंड दे थिंक इज अच्छा साफ करीब से गुजरता हुआ पानी साफ है. बट ऑल वाटर पैरामीटर्स for water quality are really important, each and every parameter. So we can say that Karachi is facing the issue of clean water in some areas due to corruption of Sindh government or any other reason. Yes, you are right. The role of Ali Abbas, the role of government is really important.
in achievement of these SDGs, as we know that पंजाब में और KPK में गवर्नमेंट्स की वजह से बहुत सारे काम हो रहे हैं. पंजाब, I can say about पंजाब के पंजाब में बहुत सारी चीजें हुई हैं, but Karachi, as we have seen that Karachi has lost its status in many things. So we can say that poor infrastructure and poor management of the government and poor responsibilities has contributed a lot in deterioration of Karachi. So और also Karachi के पास एक बहुत बड़ा रिजर्व नहीं, बहुत बड़ा रिसोर्स है, दैट इज सी वाटर. लेकिन सी वाटर भी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है. सी वाटर इज़ अ ग्रेट रिसोर्स अगर उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करे और उसको डिसैलिनेशन के थ्रू क्लीन करके अगर अपनी उसको प्रोवाइड पॉपुलेशन को प्रोवाइड करें. बट अगेन करप्शन की वजह से और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से हम पाकिस्तान हैज फेल्ड टू अचीव दीज थिंग्स. So I was saying that why SDG 6 is broken down into different targets. Anyone can give me a short answer regarding this? Anyone जो मुझे इसका जवाब दे दे, जो कि SDG 6 को हमने फर्दर पार्ट्स में, फर्दर टारगेट्स में क्यों डिवाइड किया हुआ है? Exactly, Bushra, because we have to solve this problem by taking small steps. Yes, इस तरह टारगेट हमारा ये गोल अचीवेबल हो जाता है. किसी भी गोल को अगर हमने अचीव करना तो हम इसे स्मॉल टारगेट्स में डिवाइड कर दें. और दूसरा ये कि ये एक होलिस्टिक सा गोल है जिसको हम टारगेट्स के बगैर अचीव भी नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर जो है ना सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर और हर तरह का जो वाटर है वो अलग होता है. सो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अलग होता है, यूजिंग पर्पस के लिए अलग होता है, इंडस्ट्रियल वाटर अलग होता है. सब वाटर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. सो वी कैन नॉट से कि अगर जानवर वो पानी पी सकता है तो हम भी वो पानी पी सकते हैं. नहीं, वी कैन नॉट ड्रिंक दैट. या हम वो पानी पी रहे हैं तो वही जानवर पी ले. या तो extent of contamination, frequency of contamination, and everything varies from living being to living being, from species to species, and from यूजेज, टाइप ऑफ यूजेज. कि आपको अगर घर में यूज करना है पानी तो वो अलग होगा, इंडस्ट्रीज वाला अलग होता है, और एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए अलग होता है. सो वाटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. और दूसरा है कि वाटर की कोई बाउंड्री नहीं होती भी. सो वाटर एक ऐसी चीज है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है. सो इट इज अफेक्टिंग अ लार्ज मास, क्या कह सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा. उसका इम्पैक्ट फसलों पे होगा, उसका इम्पैक्ट जानवरों पे होगा, और सिर्फ एक फसल पे नहीं होगा, काफी सारी फसलों पे हो सकता है. घर तबाह हो जाए, हो सकता है पानी खुला पानी है तो वो बहुत सारे लोग पियेंगे. एक रिवर से पानी बहुत सारे लोग पियेंगे, हो सकता है उससे 2 शहर के लोग कंटेमिनेट हो जाएं, हो सकता है उससे 3 गांव या शहर के लोग कंटेमिनेटेड हो जाएं. तो वाटर की कोई बाउंड्री नहीं होती, इस वजह से वो बहुत सारी चीजों को इफेक्ट कर सकता है. सो वाटर को इस वजह से डिफरेंट टारगेट्स में डिवाइड किया गया ताकि उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बना दी जाए. पहला ये कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बिल्कुल ही अलग पानी कर दिया जाए, मतलब उस टारगेट को ही बिल्कुल अलग कर दिया कि ड्रिंकिंग का जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग कर दें. सेकेंडली, सैनिटेशन एंड हाइजीन का ख्याल रखा जाए. वाटर इससे बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, सैनिटेशन एंड हाइजीन से. फिर है जो रिसोर्स है, रेस्टोरेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, वाटर के, उनका ख्याल रखा जाए. And different regions and communities may face unique challenges. Yes, Anusha, you are right that different regions और communities के अपने challenges होते हैं. हो सकता है कि एक region के अंदर SDG 6.1 ज़्यादा relatable है, but एक region के अंदर हमारा SDG 6.2 relatable है. फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज में हाइजीन प्रैक्टिसेस और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस बहुत पुअर है. सो उस रीजन में बहुत साफ रिवर का पानी आता है. सो ड्रिंकिंग वाटर या दूसरा जो नेचुरल रिस्टोरेशन है वो वहाँ पे रिलेटेबल नहीं होगी. रादर टारगेट 6.2 इज मोर रिलेटेबल फॉर देम. सो अचीविंग टारगेट 6.2 कैन हेल्प them to achieve the SDG 6. So let's move on. First of all, we have
SDG 6.1. So universal access to safe and affordable drinking water. So I cannot say affordable. We are having affordable drinking water in Pakistan. As Tanzeel has said कि एक माफिया जो काम कर रहा है उसके ऊपर पानी के टैंकर्स के ऊपर जो सिर्फ यूज करने का पानी दे रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर लोगों को अलग से लेना पड़ता है. तो ये एक एसडीजी है जो हमें इंश्योर करता है कि हमारे पास साफ पानी है. कैन समवन लिस्ट द पैरामीटर्स? कोई है ऐसा जो बता सके कि पानी के कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको चेक करके बताया जा सकता है कि ये पानी ड्रिंकेबल है या नहीं है? एनीवन? Yeah, Sana and Tanzeel. Yes, Sana, please unmute your mic. Yes, Sana. Tanzeel, if मैम yes, शुड आई? हाँ, यस yes. मैम. मिनरल हैवी मेटल्स जैसे उन्होंने कमेंट्स में लिखा हुआ है, जैसे जिंक, लेड, इसके कंटामिनेशन चेक करते हैं कि आया ये पानी आपको मुज़र सेहत तो नहीं है आपके लिए. और पीएच लेवल, यस बिल्कुल यूज़ होती है. और साथ में अलग अलग इलाकों में अलग, अब जैसे हमारे यहाँ हरनाई में पानी में जो है ना थोड़ा सा ऐसे है कि वहाँ पे कोयला ज़्यादा है हरनाई साइड पे, तो पानी में आपको जो मेटल्स है ये लाजमी मिलती हैं. तो वो जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर भी है वो आपके लिए इतनी कंटामिनेटेड है कि मतलब आप उसको अगर पियेंगे कुछ अरसे बाद तो आपको कैंसर कॉज हो सकता है. Exactly. Thank you, Tanzeel. Yes, pH, BOD, COD, Sonam has told us. TDS, TSS, TDS is total dissolved solids, TSS, chlorine, hardness, etc. and physical parameters. Yes, color, taste and odor are the physical parameters जो कि हम किसी पानी को देखते साथ ही बता सकते हैं कि वो पीने लायक है कि नहीं. उसमें कलर, टेस्ट और ऑर्डर होता है. वो आई थिंक मोस्ट कॉमन पीपल और ले मैन भी उस इन्हीं 3 पैरामीटर्स को देखता है कि पानी ड्रिंकेबल है कि नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है. पानी के बहुत सारे केमिकल पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें असेस करना होता है. लाइक पीएच को 6 to 8, 6.5 to 8.5 के दरमियान में होना चाहिए, अदरवाइज पानी ड्रिंकेबल नहीं होगा. दूसरा कि उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स का टेस्ट होता है, और बहुत हार्डनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स भी. ऑल्सो बायोलॉजिकल उसमें बीओडी के अंदर फिर हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चेक करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स आर डिजॉल्व ऑक्सीजन इज ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट पैरामीटर. सो ये सारे पैरामीटर्स अगर अप टू द मार्क हैं तो पानी ड्रिंकेबल है. इफ लेट सपोज हमारे पास पानी के अंदर कोई आर्सेनिक की बहुत छोटी अमाउंट डिटेक्ट हो जाती है तो वो भी पानी पीने के लायक नहीं होगा. वी नीड टू क्लीन इट, वी नीड टू फिल्टर इट एंड देन उसको पिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल किसी पानी के अंदर सल्फेट जाते हैं. यस तैयब, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आपने बोला कि कराची के पास जो है वो रिसोर्स है सी वाटर, तो उस वो कंटेमिनेटेड होता है, लेकिन क्या उनके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे वो कंटेमिनेटेड वाटर को फिल्टर करके कराची को भी पानी प्रोवाइड कर सकें और जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है उस वहाँ भी प्रोवाइड कर सकें? आपके कहने का ये मतलब है कि ये इस सी वाटर को वो क्लीन करें और कराची के अलावा दूसरे शहरों में भी प्रोवाइड करें. यस. सी वाटर जो है वो डायरेक्टली कराची के साथ लगता है. तो ऐसा है कि अगर हम डिसैलिनेशन रिवर्स ऑस्मोसिस या फॉरवर्ड ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं तो वो हमारे पास एक जस्ट एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप उस सी वाटर को डिसैलिनेट करें और कराची को सप्लाई करें, क्योंकि कराची के पास पानी का मसला है. सो डायरेक्ट इफेक्टी कराची है और डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उस पानी का वो भी कराची है. तो हम ये कर सकते हैं कि पहले हम कराची को वो कर दें कि आपके पानी की कमी को इस तरह पूरा किया जा सकता है. दूसरा ये कि जो उसमें डिसैलिनेशन में जो होगा सबसे बड़ी चीज़ आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग. तो इन पाकिस्तान के पास पाकिस्तान लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फाइनेंसिंग भी कहते हैं नहीं है, क्योंकि जो अवेलेबल फाइनेंसिंग आती है वो भी
उन चीज़ों पे नहीं लगती जिन चीज़ों की वो होती है। सो जो दूसरे शहरों तक ट्रांसपोर्टेशन या दूसरे शहरों को पहुँचाना होगा, दैट विल need a lot of infrastructure development and a lot of financing behind it, and we cannot ensure transparency, accountability and other things in this system. So उसका सिंपल यही चीज़ है कि आप पानी साफ करके सिर्फ कराची को दे दें और बाकी शहरों के लिए आप कोई और चीज़ डिवाइस कर लें, कोई और सॉल्यूशन डिवाइस कर सकते हैं। ये जो डिसैलिनेटेड वाटर होता है, ये है मिडल ईस्ट में, ये कतर में, सऊदीया में, इसराइल कर रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू डू दिस बिकॉज वी डोंट हैव फाइनेंस फॉर इट। I think I have given the answer. So Yes, thank you. you're welcome. So anyone else who wants to unmute him or herself and say something? Busha, yes, you can unmute yourself. जी, आपने थोड़ी देर पहले बात की एग्रीकल्चर से इसका ताल्लुक है और उसके मसाइल भी हैं। तो अगर इसके प्रॉब्लम्स को कुछ देखा जाए तो उसमें मेरे माइंड में कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि बाकी एसडीजी नंबर, सॉरी एक मिनट, जो कि एसडीजी नंबर 13 से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। उसका सलूशन ये है कि देखें, मोस्टली हम ये चीज़ फेस करते हैं, अगर हमारी ज़मीन जो है वो नहरों के करीब है फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम उस ज़मीन पे चावल की फसल जो है वो ज़्यादा काश्त करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें जो है वो पानी की, उस ज़मीन में जो है पानी की बहुत ना ज़्यादती हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ फसलें हम वहाँ पे उगा नहीं सकते दोबारा। एक तो ये इशू होता है, इसका सलूशन है मेरे माइंड में। और एक दूसरा इशू होता है कि पानी की कमी हो जाती है कुछ ज़मीनों में, अगर हम कंटिन्यूसली ऐसी फसलें लगाएं जो वहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा कह लें इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो इसका सलूशन ये है कि प्लांटेशन में, अब ये नहीं कि हम वहाँ पे है तो वो भी प्लांटेशन जो हम वहाँ पे फसलें उगा रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सस्टेनेबल सा हल है, वो ये है कि हम अगर तो उस ज़मीन में पानी की ज़्यादती हो गई है ना, तो वहाँ पे हम युगलिना, ये जो अपना सफ़ेदे के दरख्त होते हैं वहाँ पे वो उगाएं, ठीक है। वो जो है वो पानी को बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे वहाँ के जो पानी की कह लें जो उसका लेवल है ना वो मेंटेन हो जाएगा। और फिर जब आपको लगे कि अब इसका लेवल मेंटेन हो गया, तो आप उसको लकड़ी को काट के या वट एवर का कुछ और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर उसमें पानी की कह लें कमी हो जाती है, तो फिर वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम वो वाली फसलें उगाएंगे जिनका एक तो वो पानी कम इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, दूसरा उनका हमें फ़ायदा ज़्यादा उसमें। आई डोंट नो इट्स साइंटिफिक नेम, लेकिन जो तिल जो होते हैं जिनका हम ऑयल भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं, उसका पौधा जो है वो बड़ा कम पानी इस्तेमाल करता है, और इसका जो ऑयल होता है ये बड़ा महंगा जो है ना वो कह लें सेल होता है। तो इससे एक तो इकॉनमी बड़ी बेहतर हो जाती है, इकॉनमी से भी रिलेट कर रहा है, प्लांटेशन से भी, सॉरी क्लाइमेट चेंज से भी। जब हम प्लांटेशन करेंगे तो ऑब्वियसली क्लाइमेट पे बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। सो ये कुछ सॉल्यूशंस थे मेरे माइंड में जो मैंने शेयर किए। दैट्स इट। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है बुशरा, एंड आल्सो वी कैन केटर वाटर पोल्यूशन फ्रॉम इट। हम लोग हैवी मेटल डिकंटामिनेशन जो कर सकते हैं इससे, कि हम ऐसे प्लांट्स लगाएं जो आर्सेनिक को अपटेक कर सकें, या ऐसे प्लांट्स लगाएं जो नॉट एडेबल नाउ, बट ऐसे प्लांट्स लगाएं जो आर्सेनिक को अपटेक कर सकें, या हमारे पास अगर उस सॉइल के अंदर कॉपर ज़्यादा है तो वो कॉपर को अपटेक करके उस सॉइल को या उस पानी को क्लीन कर सके। सो ये सब सॉल्यूशंस जो होंगे वो एरिया स्पेसिफिक होंगे, एरिया स्पेसिफिक रिसर्च की जाएगी और उन एरियाज के हिसाब से फिर प्लांटेशन की जाएगी। जैसे कि यूकेलिप्टस, जैसे आपने बताया ना, विदाउट एनी रिसर्च यूकेलिप्टस वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान, और थ्रू आउट इस्लामाबाद उसको वो कर दिया गया था, प्लांट कर दिया गया था, जिससे इस्लामाबाद का वाटर टेबल काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। सो every area has their own appropriate and suitable species and plants to be grown. And Amina, you can unmute yourself and contribute, please.
Amina, do you want to say something? Yes, Tayyiba. अब जो देखें जैसे लाहौर में और भी जगहों पे फिल्टर्स लगाए हुए हैं, लेकिन अब तो उनका पानी भी जो है ना वो गंदा होने लग गया है, तो उसको कैसे साफ किया जा सकता है? देखिए, फिल्टर्स की अपनी वो होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है। जैसे हमारे पास हर मशीन की ड्यूरेबिलिटी होती है, इसी तरह फिल्टर्स की भी अपनी ड्यूरेबिलिटी होती है। एक तो फिल्टर्स को हम उन्हें साफ करना होता है। आई डोंट नो कि मेंटेनेंस कितने अरसे बाद होती है ना वहाँ लाहौर में, बट फिल्टर को हर सालाना एनुअली या हर 2 साल बाद उसको बड़े लेवल पे उसको उसकी मेंटेनेंस की जाती है। और जब घरों के लेवल पे फिल्टर लगता है तो उसको हर 6 महीने बाद क्लीन किया जाता है। तो मे बी दीज आर दी फैक्टर्स के उसको क्लीन नहीं किया जाता। दूसरा कि जब वो क्लीन होगा तो वो फिर बार बार रीयूज होगा ना। तो जब रीयूज एक चीज, लेट सपोज इफ दे आर क्लीनिंग इट एंड मेंटेनिंग इट एंड वी आर रीयूजिंग इट फॉर क्लीनिंग द वाटर, एंड रीयूज करने के कुछ अरसे बाद फिर उसको हमें चेंज करना होगा फिल्टर को, क्योंकि फिल्टर एक अरसे तक काम करेगा, उसके बाद फिल्टर को चेंज करके उसको किसी और फॉर्म में रिसाइकल करना होगा, सर्कुलर इकोनॉमी। और फिल्टर चेंज करके नया फिल्टर लगाना होगा। तो सो दीज आर द रीजंस कि बस एक दफा फंडिंग को मटेरियलाइज करके बता दिया जाता है कि फंडिंग यहाँ लगी है, यहाँ फिल्टर लगा दिया है, बट आफ्टरवर्ड्स उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती, आफ्टरवर्ड्स उन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाता। सो ये भी एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर के चीज़ें बाजुकात फंडिंग को सिर्फ दिखाने के लिए, इंडोर्स करने के लिए दिखा दी जाती हैं कि यहाँ फिल्टर्स लग गए हैं या लाहौर में हमने इतने फिल्टर्स लगा दिए हैं, ये अचीव कर लिए, बट आफ्टरवर्ड उसकी कोई वो नहीं होती है, उसको कोई कोई केयर नहीं की जाती या देखभाल नहीं की जाती। जस्ट उसको सिर्फ मोनेटाइजेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, रादर देन उसको ह्यूमन राइट इशू के तौर पे देखा जाए। तो फिर तो जो भी काम कर रहा है मतलब पानी के लिए उसको साफ करने के लिए फिल्टर लगा रहा है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा ना ही लगाया जाए। कौन से मतलब पानी का फिल्टर लगा, क्या मतलब? जब मतलब देखें सफाई तो करनी नहीं है, अगर फिल्टर लगा दिया है एक दफा तो सफाई करनी नहीं है, पानी गंदा हो गया है, तो फिर मुझे लगता है कि उस फिल्टर का क्या फायदा है? लोग बीमार हो रहे हैं तो उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं, ये तो एक आप गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे ना। अगर एक हाउस होल्ड लेवल पे अगर देखें तो लोग करते हैं, अपने फिल्टर्स चेंज भी करते हैं और उन्हें क्लीन भी करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो गवर्नमेंट लेवल पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा ही होता है। कुछ लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, आई माइट बी रॉन्ग, और मैं कुछ गलत भी कह सकती हूँ शायद। सो गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा ही होता है, उनके पास फंड्स आते हैं, जस्ट टू फंड्स आते हैं और वो जो हमें फंड्स दे रहे होते हैं वो कहते हैं कि आपने इस एसडीजी के ऊपर काम करना है। और वो इन फंड्स को सिर्फ वो करवाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लाहौर इस्लामाबाद बहुत प्रोमिनेंट सिटीज है, इनके ऊपर फोकस की अब थोड़ी कम जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनजीओज भी काम कर रही हैं, लोग पर्सनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, लोगों के पास एजुकेशन भी ज्यादा है। रादर उनको दूसरी सिटीज पे ज्यादा वो वो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बट लाहौर के ऊपर वो इतना अभी ध्यान दे रहे हैं, जैसे लाहौर के अंदर प्लांटेशन भी बहुत वास्ट अमाउंट में करेंगे, उसकी जो सैनिटेशन है और उसकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी बहुत बड़ा सिस्टम बनाएंगे और उसमें चेंजेस भी करेंगे, उसको इनोवेशन भी लेकर आएंगे, जस्ट टू इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हम ये ऐसा कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट टू उसको इंडोर्स करने के लिए, अच्छा गवर्नमेंट ने ऐसा कर लिया है। सो ये जो सारे क्लाइमेट चेंज और SDGs है, these are not linked with these are actually linked with our personal जो हमारी पर्सनल विल है, बट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो जाकर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। सो फिल्टर्स ना लगाना या लगाना लगाना तो फायदेमंद है, ना लगाने से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उनको उस चीज के ऊपर कंप्लेन करना, जैसे वहां पब्लिक जाकर कंप्लेन करते कि यहाँ का फिल्टर गंदा है, इस फिल्टर को चेंज कर दिया जाए, इससे लोग इतने बीमार हो रहे हैं, या इतने लोग सर्वे किया जाए कि इतने इतने लोग बीमार हो गए हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, तो वाटर पोल्यूशन हो रही है, तो इस फिल्टर को चेंज कर दिया जाए। ऑफ कोर्स फिल्टर लगाने का फायदा तो है, लेकिन उसको बाद में मेंटेन करना जो है वो भी गवर्नमेंट का काम है, जिसपे वो लोग डंडी मार जाते हैं, जिसपे बिल्कुल फिर काम नहीं होता। सो दिस इज माय पॉइंट, फायदा तो होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप वो चीज करो ही ना, वो चीज वो लोग कर लेते हैं लेकिन उसको एंड स्टेज तक पहुंचाते नहीं है। सो ओके, थैंक यू।
एक और क्वेश्चन, जो लाहौर का पानी है और जो लाहौर से बाहर वाला पानी होता है जिसको हम खारा पानी बोलते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा ज्यादा अच्छा होता है? मतलब खारा पानी का मतलब उसकी हार्डनेस ज्यादा है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज्यादा है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ जो सल्फेट्स हैं वो ज्यादा है, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स खारा पानी अच्छा नहीं होता, खारा पानी स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होता और पीने के लिए भी अच्छा नहीं होता। सो लाहौर का पानी, इफ वी सी, इफ आप उसका ऑनलाइन अगर वो देखें डेटाबेस, लाहौर के पानी का अगर वो खारा नहीं है तो खारा पानी जो नहीं है वो ज्यादा हेल्दी होगा फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस रादर देन जो हार्ड पानी है। हार्डनेस इज अ पैरामीटर, जो अभी सोनम ने बताया था। हार्डनेस इज अ पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, जिसको मेजर करके बताया जाता है कि वाटर इज ड्रिंकेबल और नॉट, वाटर किस पर्पस के लिए यूज होगा। सो अगर हार्डनेस ज्यादा है तो इट इज नॉट ड्रिंकेबल, अगर हार्डनेस कम है तो इट द वाटर इज गुड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। सो लाहौर का पानी की हार्डनेस कम है, सो इट वुड बी गुड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस एंड अदर पर्पसेस एज वेल। Okay, so let's move on. So we have actually discussed कि क्या क्या हमारे पास challenges हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एंड अफोर्डेबिलिटी जो कि कराची का एक पॉइंट रेस किया था, वो इसमें अफोर्डेबिलिटी आ जाती है। एंड कंटेमिनेशन, जो तैयबा ने अभी बात की है कि उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है वाटर रिसोर्सेज की, एंड जो हम उसका जो मीडियम लगाते हैं उसको क्लीन करने के लिए उसकी भी कंटेमिनेशन हो जाती है, जो फिर अगेन लिंक्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप के अंदर, कि वो गैप मेंटेनेंस गैप आ जाता है कि जो कंटेमिनेशन हुई है उसको क्लीन करने के लिए वो आगे कोई काम नहीं करते। दूसरा, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी एक सबसे बड़ा मसला है। पॉपुलेशन ग्रोथ होना और उसको फिर मैनेज ना करना, दैट इज दीज आर द मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान के। ग्रोथ हो रही है, ठीक है, लेकिन आप उसको मैनेज करें, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन भी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ एक इंक्रीजिंग इशू है। एंड क्लाइमेट चेंज विच इज़ द वन ऑफ द मेजर इशूज, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो रहा है। जैसे हमारे पास सैलाब आए थे, सैलाब की वजह से काफ़ी इलाके डैमेज हुए थे। सैलाब आने से ये हुआ था कि जो हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज थे वो भी कंटामिनेट हो गए थे। सैलाब, फ्लड हैज एक्सेस वाटर, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी कंटामिनेशन एंड सेडिमेंटेशंस लेकर आता है जो हमारे क्लीन वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चरल लैंड को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देती हैं। तो ये एक क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल है, हाउ क्लाइमेट चेंज इज affecting our clean water resources. And if we see on the other extreme, अगर हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर है, एक तरफ फ्लड्स आते हैं वो भी पानी को कंटामिनेट कर देते हैं, एक तरफ अगर ड्राउट्स आएंगे तो वो भी पानी के लेवल को नीचे कर देंगे, जिससे बहुत सारी कंटामिनेशन होने का खदशा है एंड बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेंट्रेट होने का खदशा है उस पानी में, और वो पानी फिर ड्रिंकेबल एंड यूजेबल नहीं है। और कुछ केस स्टडीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि पाकिस्तान के अंदर सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर को कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं। दैट इज पाकिस्तान साफ पानी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर डिफरेंट फिल्टर्स लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के, पंजाब के अक्रॉस एंड पाकिस्तान के अक्रॉस, ताकि साफ पानी मिले। एंड पानी पाकिस्तान प्रोजेक्ट के अंदर भी यही है कि जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर फिल्टर्स लगाए जाएं और साफ पानी प्रोवाइड मुहैया किया जाए जो जिन लोगों की एक्सेस नहीं है साफ पानी के पास। और पाकिस्तान क्लीन वाटर नेटवर्क में भी यही है कि बहुत सारी एनजीओ एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रही हैं एंड पानी की जो सहूलत और सप्लाई और एक्सेसिबिलिटी है उसको वो मेक श्योर कर रही है। एंड थर्ड, वाटर प्रोजेक्ट, आई थिंक आप लोगों के यहाँ पे कोई सिंध से भी है, सिंध से कोई है यहाँ पे? यस सोनम। सो सोनम, व्हाट कैन यू टेल अबाउट थर का पानी का जो इशू है वो बहुत बड़ा है, तो आप हमें कुछ इस बारे में एजुकेट करेंगी जो थर के अंदर जो वाटर स्कैर्सिटी है और सिंध गवर्नमेंट उसको किस तरह से केटर कर रही है? सोनम, कैन यू कंट्रीब्यूट? श्योर, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ?
Yes, you have mentioned that फ्लोराइड के फ्लोराइड कंटेंट उनके पानी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोन डिफॉर्मेशन एंड इलनेस हो रही है. एंड दूसरा ये कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान में 2004 में आया था, जिसमें उन्होंने इंश्योर किया था कि वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स इंस्टॉल किए जाए था. मेरे ख्याल से प्योरिफिकेशन प्लांट्स एंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स पाकिस्तान अभी तक इसी स्टेप तक पहुंचे. दैट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप विच कैन बी अचीव्ड इन 6.1. दैट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप कि आप बस फिल्टर इंस्टॉल कर दो और आपको साफ पानी मिल जाएगा. बट अब इसके अलावा जो है वी शुड टेक अ स्टेप अहेड ऑफ इट, कि पानी के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है, न्यूट्रिएंट एक्सीड भी कर सकते हैं. तो उस पानी के न्यूट्रिएंट लेवल को लेवलाइज करना या किसी और तरीके से पानी मुहैया करना फिल्ट्रेशन के अलावा, या जो नेचुरल रिसोर्स है उनको साफ करना, अब पाकिस्तान को उसकी तरफ मूव करना चाहिए रादर देन इंस्टॉलिंग अ लॉट ऑफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स इन प्रोविंसेस. सो इसमें किसी और की राय हो, मेरे ख्याल से तो यही है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान है. अक्रॉस द पाकिस्तान के हर जगह फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दिए जाएं और ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेसिबल बना दिया जाए ना, जिससे ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबल बन जाए कुछ हद तक, बट नॉट जिस हद तक बनना चाहिए उस हद तक नहीं हो रहा. बिकॉज ये जो फ्लोराइड कंटेमिनेशन लिखी है इन्होंने, फ्लोराइड कंटेमिनेशन और आर्सेनिक कंटेमिनेशन, फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो लगते हैं वो बेसिक फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं जिससे सिर्फ हार्डनेस और जो बीओडीज होते हैं और सीओडीज वो इनको कंट्रोल करते हैं. अगर हम आर्सेनिक की कंटेमिनेशन को रिमूव करना चाहते हैं, वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिल्टर फॉर हैवी मेटल डीकंटेमिनेशन या हैवी मेटल रिमूवल के लिए हमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स या स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिल्टर्स चाहिए होंगे विद स्पेसिफिक पोर साइजेस. So government needs to be educated. Government needs to be educated, and it should provide the education to all at the corporate level, at organizational level, and at level. सिर्फ फिल्टर एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह के होते हैं. और पाकिस्तान में पानी के अंदर बहुत तरह की कंटेमिनेशन पाई जाती हैं, जिनके लिए हमें डिफरेंट तरह के फिल्टर्स और डिफरेंट तरह की प्योरिफिकेशन की जरूरत है. So with that, we are moving to 6.2, that is access to adequate sanitation and hygiene practices. Sanitation and hygiene. Sanitation में सबसे बड़ा जो issue आता है वो है ओपन डेफिकेशन के ऊपर, जिसके अंदर जो रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा इशू है और जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे डिजीजेस फैलती हैं. जिसमें जो यूएनडीपी और यूनाइटेड नेशंस का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वॉश यूनिवर्सली, जिसके अंदर जो पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस है उन्हें रेडिकेट करने का ये प्रोग्राम है कि स्कूल्स और पब्लिक लेवल पे लोगों को एजुकेट किया जाए कि आप अपनी हाइजीन प्रैक्टिसेस को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, किस तरीके से आप डेफिकेशन को वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. इसमें जो इंडिया का सबसे बड़ा रोल ये था कि इंडिया ने अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का यूज़ किया इन टॉपिक्स पे एजुकेट करने के लिए. एक मूवीज बनी है इन टॉपिक्स के ऊपर ताकि उनकी आवाम कुछ हद तक एजुकेट हो जाए कि ये हमारे मुल्क के अंदर ये इशू है. आई थिंक पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती. जस्ट वो सिर्फ एक कैंपेन अगर कोई चलती है तो उसके लिए 1 सेकंड का या 2 सेकंड का यूट्यूब पे ऐड आ जाता है, या कोई ज़रा से दिनों के लिए कुछ चलता है, लेकिन इस पे बाकायदा ड्रामास या इस पे कोई बाकायदा चीज़ नहीं बनती जो कि आवाम को टारगेट करके ऑडियंस को एजुकेट करे कि वाकई ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क में है और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए. So anyone who wants to add in this? और ओपन डेफिकेशन कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन में ये है कि वो पाकिस्तान में इंश्योर किया है कि ओपन डेफिकेशन को इरेडिकेट किया जाए, इरेडिकेट ना भी सही तो उसको रिड्यूस किया जाए. और उसके लिए बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और लोगों को एजुकेट किया गया है कि आप रूरल एरियाज में कि आप ये ना करें, इसके बहुत सारे हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं. और ये पैट्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है कि ओपन डेफिकेशन को रिमूव किया जाए. सिंध और बलूचिस्तान के रूरल सैनिटेशन इनिशिएटिव्स जो इसमें हाइजीन और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करें. अच्छा, मेरे पास तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे इंटरनेट से मिली और या मीडिया से मिली.
Tanzil, if you are from Balochistan, you can add. Can you educate us on this point कि आपने practically ये होते हुए देखा है, कोई ऐसी sanitation campaign होते हुए देखी अपने province के अंदर या city के अंदर? जी बिल्कुल, इस तरह के कई सारे एनजीओज हैं जो इस चीज़ पे काम कर रही हैं, और मतलब मोस्टली उन बेचारों को तो कोई डोनेशन और कुछ ऊपर से तो मिलता नहीं, तो वो जितने उनके मेंबर्स होते हैं वो सारे पैसे मिला के तो अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं। और मैं भी खुद 2-3 इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे हिस्सा रहा हूँ, और हमने खुद ही खुद को मतलब डोनेट किया है पैसे हम लोगों ने, बाद में फिर उसके बाद हम सारे मेंबर्स ने मिलके इस पे काम किया है। लेकिन हमें गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आता, बहुत बहुत कम है। और अगर वो करना भी चाहते हैं तो कुछ ही जो शहर जिनका नाम आप शायद टीवी पे सुनते रहते, तो सिर्फ उन्हीं पे ही वो काम चलता है, जैसे गवादर, क्वेटा, इस तरह के इलाके हैं जिनमें गवर्नमेंट अगर काम करना भी चाहती है तो करती है, और बाकी जो शहर है वो इस चीज़ से महरूम है। अब हमारा बॉर्डर पंजाब से भी लगता है, हमारा बॉर्डर सिंध से भी लगता है, लेकिन उन दोनों इलाकों में हालात बहुत बुरे हैं। हम्म इस बात को मैं इंडोर्स करूंगी क्योंकि हमने बलूचिस्तान के किसी और एरिया का नाम कभी भी नहीं सुना। आई हैव नेवर बीन टू बलूचिस्तान, तो आई वुड से कि मैंने 2-3 शहरों के गवादर सुना है, गवादर एंड कोयटा, और बाकी शहरों के नाम शायद मैंने सोशल स्टडीज या पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स में पढ़े हूँ। आई डोंट नो अबाउट एनी अदर सिटी, या वहाँ पे एजुकेशन या वहाँ पे वाटर या सैनिटेशन की क्या सिचुएशन है, वी डोंट नो अबाउट इट। सो यू आर राइट। थैंक यू तंजील। Now, then we have Saaf Mahal and Clean Environment Program that is also related to hygiene and sanitation, जिसके अंदर वो स्कूल टू स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जाके पब्लिक को अवेयर करते हैं कि आपने किस तरीके से अपना आफ्टर डेफिकेशन अपनी क्लीनिंग किस तरह करनी है, जिस तरह हाथ धोना, हाथ साफ करना। जो सेफ गार्ड ने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी और डेटोल ने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है। सेफ गार्ड की कैंपेन तो अभी भी एड्स में, एडवर्टीजमेंट में आती है कि हाथ को 5 सेकंड तक इस साइड से धोएं, दूसरी साइड से धोएं, और इस तरीके से आपने धोना है। स्कूल्स में ये बहुत बड़ी कैंपेन चली थी उस वक्त, एंड दैट वाज वेरी यूजफुल because most of us were in schools at that time जब वो कैंपेन लाइव थी, and we were aware and we had been using that practice, hand washing practice since then. So ये साफ माहौल का एक वो था, ऑब्जेक्टिव है। एंड यूनिसेफ एंड केपीके की गवर्नमेंट भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कोलैबोरेट करिए कि किस तरीके से केपीके की हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को एलिवेट किया जाए। इसमें ये भी होता है कि सिर्फ पब्लिक वॉशरूम्स बनाना नहीं, बल्कि उनको मेंटेन करना एंड उनको इनोवेट करना, उनको अच्छे पब्लिक टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करके देना इज ऑल्सो अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इट. Because we see there are many public toilets across the city, but they are not well maintained, they are not hygienic, and they are not sanitized. So इसका ये भी गोल है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स आवाम को मुहैया कर रहे हैं तो आप उन्हें मेंटेन भी करें और उनको हाइजीन के एन मुताबिक प्रोवाइड करें. So now we have an activity in which we will be talking about the common hygiene practices. So all of you, let's suppose that you are meeting an ordinary man, a layman, who doesn't know about water scarcity and water-borne diseases and any such SDG. So आपने उसको समझाना है, आपने उसको कुछ एडवाइसेस, सजेशंस या उसको कुछ मैयर्स बताने हैं जिससे वो कन्विंस हो जाए और अपने लिए वो वाटर स्कैर्सिटी और कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आपने उसको समझाने और अपने लिए कोई हाइजीन प्रैक्टिसेस वो अपने साथ अडॉप्ट करके जाए. So this is the activity in front of you. You can all contribute in this activity orally, or anyone who want to contribute it in the written form, they may also. Yes, Bushra.
अगेन अच्छा मैम, इसमें सबसे पहले जो बात आती है ना, वो आती है कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर तो आपने वैसे पहले बात कर दी कोई एजुकेटेड नहीं है या उसको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो अगर तो अवेयरनेस नहीं है तो ये तो एक एजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है और एक अनएजुकेटेड भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन है। अगर तो हमने एक एजुकेटेड पर्सन को करना है तो हम उसको एजुकेशन से रिलेट करके उसको समझा सकते हैं कि अगर तुम साफ़ पानी नहीं पियोगे या इस तरह से सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखोगे तो ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी हेल्थ में आएंगे, और जिसकी वजह से जो है तुम्हारी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, ठीक है? उसको तो इस तरह से इसी लैंग्वेज में समझा देंगे और वो कन्विंस हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपसे शेयर भी किया। आज ही मैंने इस चीज़ पे काम किया है, और वो सब एजुकेटेड पर्सन थे, हमारी यूथ थे। और अगर हम यहाँ पे कोई एक अनएजुकेटेड पर्सन है जिसको बिल्कुल भी नहीं इन चीज़ों का अंदाज़ा है, एजुकेशन की कह लें कि इम्पोर्टेंस का, और ना ही वाटर के इम्पोर्टेंस का, तो उसको जो है हम उसका तरीका जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। उसको हम अगेन कुछ इस तरह के सवाल पूछेंगे कि हाँ भी तुम्हारे नज़दीक या आपके नज़दीक ये जो पानी तुम इस्तेमाल कर रहे हो या पी रहे हो, ये साफ़ है? वो कहेगा जी साफ़ है, ये दिखने में साफ़ है, ये बिल्कुल अच्छा है, हमारे घर का पानी बड़ा गहरा बोर हुआ है, जो अमूमन आगे से जवाब मिलता है, ठीक है? तो इसका जो है सिंपली उनसे पूछा जाए आगे से कि क्या फिर आपको कभी पेट में दर्द हुआ है, या इन जितनी भी वाटर बोर्न डिजीज़ हैं उनके नाम ज़रा उसकी ज़ुबान में लिए जाएँ। क्या हैज़ा हुआ है, कभी डायरिया हुआ है, कभी इन चीज़ों के बारे में जब उससे पूछें तो ऑब्वियसली उसका जवाब येस में होगा। तो उसको बताया जाए कि तुम फिर साफ़ पानी नहीं गंदा पानी पी रहे हो, गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? फिर वहाँ से उसको ऑब्वियसली जब उसको इस चीज़ की थोड़ी-सी अवेयरनेस मिलेगी, अगेन उसकी हेल्थ से रिलेट करके, अगर वो जो है कोई कह लें कि कोई पैसे कमाने वाला बंदा है या कोई जॉब करने वाला बंदा है, तो उसको हम इस तरह अवेयर कर सकते हैं, जब तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी तो ऑब्वियसली तुम काम नहीं कर सकोगे, तुम पूरे घर को लीड कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पूरे घर वाले इस चीज़ से अफेक्ट होंगे। तो ऑब्वियसली तुम्हें इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, इस चीज़ पे जो है काम करना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए। एटलीस्ट इस्तेमाल करने का तो तरीका बाद का है, पहले तुम साफ़ पानी पीने के लिए इस्तेमाल करो, और साथ साथ उसको जो है ऑब्वियसली जब वो इस तरफ आएगा तो उसका रुझान इन चीज़ों की तरफ बढ़ जाएगा। दैट्स इट। एंड एनी वन ऑफ यू, बुशरा, अगर आपका कभी इनकाउंटर ऐसे बंदे से हुआ है जो बहुत ज्यादा मतलब आपको समझाना उसको मुश्किल हो गया हो, उसको कन्विंस करना मुश्किल हो गया हो? जी, अभी आज ही की बात है अगेन। वो मैंने उनसे पूछा ना कि जी आप साफ़ पानी पीते हैं? जी हम साफ़ पानी पीते हैं। मैंने कहा क्या लगता है आपको, कैसे साफ़ है? आपको कभी ये डिजीज़ेज़ हुई हैं इस तरह से? उन्होंने कहा जी हुई हैं, लेकिन हमारा पानी साफ़ है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने बोला जी हमारा घर जो है वो ना नहरों के करीब है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 नहरें भी हैं। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे फिर इश्यूज़ मैंने उनको बताए कुछ। मैंने उन्हें बताया कि आप अगर कह लें कि आपको यकीनन जब वो वाली बीमारियाँ हुई तो ऑब्वियसली जो पानी आपके घर में आ रहा है ना, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। या फिर उनको मैंने ये कहा कि अगर कुछ ने कहा कि हम लोग ना साफ़ पानी इस तरह से हमें दस्तयाब होता है कि हम नहरों से जाके ले आते हैं या कोई दे जाता है इस तरह से, लेकिन हम पे करते हैं उसके लिए। मैंने कहा आप, इसका मतलब है आप अपने बेसिक राइट के लिए पे कर रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये तो हमारा हक है और हम इसके लिए पे क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने उनको ये सारी इसकी इम्पोर्टेंस बताई और ये सारी चीज़ें, और फिर वो समझ गए। शुरू में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था जब उन्होंने कहा कि नहरों के करीब भी हैं और ये भी इश्यूज़ हैं। फिर वो मुझे कुछ इश्यूज़ आइडेंटिफाई हो गए थे, मैंने उनसे क्वेश्चनिंग की और देन ये सॉल्व हो गया। Yes, and any one of you who wants to contribute in this activity, please. Yes, Tanzir. मैम हमारे यहाँ जो कोयटा से दूसरी तरफ जो बाकी इलाके हैं तो वो मोस्टली कारेजात पे वो बने हुए थे, मतलब कारेज के थ्रू का पानी आता था, और जो कि अब जाके खुश्क हो चुके हैं। तो अगर मोस्टली बाकी लोग जिनके यहाँ कारेज होंगे उनको ये बात पता होगी कि वो लोग इस बात को समझते हैं और ये इस बात के बारे में उनको पता है कि पानी का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है ड्यू टू स्कार्सिटी। और वो जो है ना कभी 200 फुट पे होता था या 100 फुट पे होता था, अब वो 400 फुट पे चला गया। तो जब वो बोरिंग लगाते हैं या बोर करते हैं तो वो उनको
और ज्यादा डीप डाउन नीचे जाना पड़ता है। तो ये चीज उनको फील होगी कि पहले हमारे यहाँ नहर बहा करते थे, अब वो नहरें खत्म हो गई, खुश्क हो चुकी हैं। और वो, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ के लोग जानते तो हैं कि पानी का मसला होता जा रहा है, पानी खुश्क होता जा रहा है, हमें हमारे पास पानी की कमी होती जा रही है, लेकिन वो वेट करते हैं बारिशों का कि बारिश आएगा तो उसकी वजह से पानी की जो है ना लेवल्स वो थोड़े ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा पानी बच जाएगा। अब जब कभी भी किसी से बात करते हैं कि यार आपने इसके लिए किया क्या है, मतलब अगर कोई इनिशिएटिव आपने लिया हो इस पानी को स्टोर करने के लिए या कुछ, तो हमारे यहाँ लोग ये बोलते हैं कि हमने कुछ पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और वो मतलब इस तरह है जैसे कि सीमेंट से उन्होंने बिल्कुल उसको ऐसे बनाया हुआ है और उसमें वो पानी को जमा करते हैं। पर सबसे बड़ा इश्यू ये है कि पानी एक दिन साफ अगर रहेगा, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद उसमें काई जमा होना शुरू हो जाती है। तो उनके पास सही कोई तरीकाकार नहीं है कि इस पानी को हम स्टोर कैसे करें। अब उनके लिए इनिशिएटिव्स, उनको जब हम मतलब अगर हम उनको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे लोगों को इस चीज़ के बारे में कि आप जो है ना इस पानी को जब आप स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद आप इसको ज़्यादातर लोगों में अगर बांट दें कि उससे पानी का रास्ता निकल रहा है कहीं और किसी और घर की तरफ, सिर्फ अपने घर के लिए ना रखें, और उसको जिधर जिधर जिन जिन इलाकों में नहीं आ रहा, और अगर जो एग्रीकल्चरल इलाके हैं उनको उन पौधों को दे दें, तो वो पानी की यूजेज शायद थोड़ी बहुत जो है ना सिर्फ और सिर्फ ज़ाया ना हो, बल्कि थोड़ी बहुत ये है कि वो बाकी जगहों तक भी पहुंच जाए। फिर ये है कि साफ पानी का जो इशू है वो मोस्टली लोग बोलते हैं कि यार हाँ हम साफ पानी पी रहे हैं, पर कोई चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं करता। आपने देखा होगा कई जगहों पे एक फिल्टर लगी होगी तो उसके सामने एक गिलास पड़ा होगा और उसी गिलास से सब पीते हैं। लोगों को नहीं पता होता कि पिछला बंदा जो पी कर गया है वो बीमार था नहीं था, उससे उसकी बीमारी मुझे लग सकती है नहीं लग सकती, किसी को कोई टेंशन नहीं होती, बस वही गिलास है उसी से पीना है। और ये सीन होता है कि उनको जो है ना लग रहा होता है कि हम साफ पानी पी रहे हैं, लेकिन ऊपर से आप उनसे पूछें कि आपको टाइफाइड हुआ है, बिल्कुल हुआ है, आपको पेट में दर्द हुआ है, बिल्कुल हुआ है, सारी चीजें हुई हैं। तो उसके बाद आप जब उनको सही तरीकाकार बताते हैं कि एक फिल्टर है उसके फिल्टर्स आप चेंज करते हो, ये लाजमी चीज होती है, जैसे आपने टूथब्रश चेंज करना होता है एक स्पेसिफिक वक्त के बाद, तो हर एक चीज को आपने साफ रखना होता है, हर एक चीज आपके वेल बीइंग हेल्थ के लिए बहुत लाजमी होती है। तो पानी अगर आपको इस तरह इफेक्ट कर रहा है तो कोशिश कीजिए कि पानी जो आप निकाल रहे हैं कहीं से डायरेक्टली पीने के बजाय उसको अगर आप फिल्टर आउट करने, थोड़ा सा खर्चा होता है, फिल्टर खरीद लें, जो जहाँ से पानी आ रहा है उसी नल के साथ अपना फिल्टर लगा लें। आजकल तो छोटे फिल्टर्स भी आ रहे हैं, वो लगा के उससे पीना शुरू कर ले, तो हो सकता है कि वो बीमारियां आपके लिए कम होती जाएं। और ये चीजें जब वो यूज करेंगे तो उनको फर्क साफ पता चलेगा कि अगर मुझे 1 महीने में 1.5 महीने में कभी टाइफाइड हुआ करता था तो अब वो मुझे हो ही नहीं रहा, वो कम हो गया है। तो वो चीज उनको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू होगी, क्योंकि ये एक बहुत जनरेशनल एजुकेशन है, ये अचानक से किसी को समझा नहीं सकते आप। आपको स्लोली स्लोली Exactly. अपने अपने स्कूल से, अपने कॉलेजेस से आपको इम्पोर्टेंस ये बतानी होगी कि यार ये चीज आपके हेल्थ के लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर हेल्थ होगी तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आधे से ज्यादा टाइम आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने होंगे, दवाइयाँ दवाइयाँ खरीदते रहना होगा, और दवाइयों की वजह से जो साइड इफेक्ट्स है फिर उससे गुजरना पड़ेगा आपको। Thank you so much, Tanzeel, for your fruitful discussion. And ये जो आपने point raise किया कि ये generational education है, this is 100% correct, because यहाँ पे जितने भी लोग हैं they are either related to this field or either working in this, और या वो इसमें बहुत ज़्यादा interest लेते हैं. So after studying the subject, a specific subject for 4 to 5 years, आपको ये रियलाइजेशन होती है कि अच्छा ये चीज हमने जाया नहीं करनी, इस चीज को कचरा हमने फेंकना नहीं है। 4 साल की डिग्री लेने के बाद हमें हमारे जहन में ये बैठ जाता है कि अच्छा ये हवा गंदी है, इसमें पोल्यूशन है, हमने यहाँ पे मास्क लगाना है, हमने इस तरह से पानी को कंटामिनेट नहीं करना या जाया नहीं करना। सो इट इज़ अ जनरेशनल एजुकेशन। वी कैन नॉट से कि हमारे पेरेंट्स को, अगर हमारे पेरेंट्स अभी भी अगर कैंपेन्स देखते होंगे, सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट कि अच्छा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो सिर्फ शायद आधे घंटे की डिस्कशन तक ही उसको रखे, बाकी उसको उसके उनके अंदर कोई रियलाइजेशन नहीं होगी कि अच्छा
क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है या पानी गंदा हो क्यों रहा है, हमें पानी साफ करने के लिए अपने बल पे कुछ करना चाहिए, या सोलर पैनल लगाना है तो सोलर पैनल का एक ये भी बहुत बेनिफिट है कि ये तो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका तो पोल्यूशन नहीं होती, नहीं वो ये सोचेंगे कि बिल वन टाइम इन्वेस्टमेंट से हमारा बिल थोड़ा कम आ जाएगा। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इट इज़ अ जनरेशनल एजुकेशन, जो कि बहुत अरसे तक अगर कोई बंदा किसी बात को सुनता रहे तो उस पर उस चीज़ का असर होगा, एक कैंपेन से या एक ट्रेनिंग सेशन से ही इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। एंड अनुषे हैज़ रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि रेडियो टेलीविजन कैंपेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है उन एरियाज में जहाँ डायरेक्ट ऑडियंस इसको सुन रही है, उनके अंदर सैनिटेशन और क्लीन वाटर प्रैक्टिसेस को इस तरीके से हम इनकलकेट कर सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन एसएमएस कैंपेन्स आई थिंक बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, क्योंकि हर रोज़ या हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई एसएमएस आया हुआ होता है दहशतगर्दी का या किसी बैंक का या किसी फ्रॉडुलेंट ऐप का, कुछ ना कुछ आया हुआ होता है। बट जो वो था जो मैंने इंडिया की एग्जांपल दी थी कि इंडिया ने बाकायदा टारगेटेड फिल्म्स भी बना दी उसके ऊपर कि ये एक सोशल इशू है, तो ये एक फिल्म है और वो फिल्म फिर बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई, नॉट ऑन द बॉक्स ऑफिस बट बहुत ज़्यादा फेमस थी कि अच्छा ये एक सोशल इशू को उन्होंने वो किया है, हाईलाइट किया है, फीमेल हाइजीन प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किए या फीमेल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया, उसको इम्पोर्टेंस दी है, और जो सैनिटेशन और हाइजीन या टॉयलेट के इश्यूज हैं उनको इम्पोर्टेंस दी है। तो इस तरह ऑडियंस में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आती रहती हैं कि अच्छा हमारे सोसाइटी में ये इश्यूज हैं एंड वी नीड टू वर्क अपॉन दिस, या एटलीस्ट वी नीड टू गिव अटेंशन टू देम। सो let's move on. Thank you, Tanzil, Bushra, and Anushe, for your contribution. Then we have water quality, improvement of the water quality and wastewater treatment. Wastewater treatment is my field on which I am doing the research. So wastewater treatment also, जो filtration की हमने बात किया वो wastewater treatment ही है जिससे पानी treat हो रहा है। इसमें main objective यही है कि इसकी pollution को reduce कर दिया जाए या उसमें जो भी I think someone wants to say something. If anyone wants to say something, they can unmute their mic. ओके, सो पोल्यूशन रिडक्शन और या अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करें, सो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हर बड़े शहर में होते हैं, लेकिन उसका मसला यही है जो मेंटेनेंस का मसला और जो उसकी इनोवेशन का मसला था, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर नॉट टारगेटेड टू एवरी पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द वाटर, एंड एवरी पोल्यूटेंट एंड एवरी कंटेमिनेंट प्रेजेंट इन द वाटर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये नहीं है कि आपका वाटर के सारे पैरामीटर्स अप टू द मार्क हैं, अगर एक पैरामीटर ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई बात नहीं ना, नहीं, एक पैरामीटर भी मैटर करता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर यूजेज पर्पस। जो हाउस होल्ड यूजेज होता है उसके अंदर पानी डायरेक्ट स्किन से हर वक्त इन कांटेक्ट होता है, सल्फेट्स अगर ज़्यादा हैं तो वो स्किन के इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा चांसेस रिस्क को बढ़ा सकता है। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप रिडक्शन की किसी तरह उनको रिड्यूस किया जाए। मेन ऑब्जेक्टिव तो एंड मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रिमूव कर दिया जाए, बट रिमूव इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, सो वी फोकस ऑन रिड्यूस। तो इसके अंदर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन गिलगित बल्तिस्तान आ जाएगी, कराची इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है, बट आई थिंक कि वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कराची के अंदर, इन द सिटी ऑफ कराची, बिकॉज कराची के अंदर वाटर कंटामिनेशन और पोल्यूशन का इशू बहुत ज़्यादा है, और लाहौर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है। और दूसरी बात ये कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए पाकिस्तान नीड्स टू हैव प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को वो लोग अनट्रीटेड, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, और जितने यूनिट्स ऑफ वाटर यू आर रिलीजिंग इनटू द रिवर, इनटू द वाटर बॉडी, यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फाइन। सो उनके लिए वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करना मुश्किल होता है, बजाय इसके वो फाइन दे देते हैं, और फाइन बाकी डिपार्टमेंट्स भी उनसे खुशी खुशी ले लेते हैं। सो दे डोंट रियलाइज कि जो फाइन लेते हैं उसका तो इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, लेकिन जो उसका हेल्थ इशू और जो ह्यूमन राइट इशू जो उससे अराइज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पाकिस्तान में बहुत कम ट्रीट किया जाता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो बहुत कम इक्का दुक्का कर रही हैं, बाकी इंडस्ट्रीज उसको ऐसे ही रिलीज कर देती हैं पानी के अंदर, जिससे पानी बहुत बड़ी अमाउंट में कंटेमिनेट हो जाता है, और कंटेमिनेट हो जाता है, और उस पर जो पब्लिक डिपेंडेंट है, एनिमल्स डिपेंडेंट है, या कोई इकोसिस्टम है नीचे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। जब all of the things present in environment work in a cycle, so if
the ecosystem is disturbed, living organisms under the water are being contaminated. Of course we are going to be contaminated as well, because उन पे बड़े animals dependent हैं, और फिर उन animals को जब हम consume करेंगे, we will also be getting those diseases in return. And desalination project, we have talked about desalination, कि Pakistan needs to have some authentic, some strong policy on desalination now. Pakistan के अंदर desalination project गवादर में initiate हुआ था 2018 में, but it was just inaugurated. Other than there is no work on it. I have tried hard कि उस पर कोई और information मिल जाए मुझे, या उस पर मैं कुछ देख लूँ कि आगे कुछ हुआ है कि नहीं. But after inauguration, on the internet and in all articles, कुछ ही articles में उसके ऊपर सिर्फ बताया गया कि अच्छा ये plant inaugurate कर दिया है फलाने फलाने बंदे ने, तो सिर्फ inauguration हुई है. Other than this there is no significant work on this. So SDG 6.4 focuses on यूज वाटर यूज एफिशिएंसी, कि हम कितना एफिशिएंटली वाटर को यूज करते हैं. सो सबसे पहली बात जो इसमें एक कमेंट में भी बताई थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो अब इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स के घरों के लिए कंपलसरी है कि आप कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं, कि जो रेनफॉल हो रही है उसको आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लें और उस पानी को फिर आप ट्रीट करके यूज कर लें. दैट इज अ वेरी एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर. एंड लो फ्लो फिक्सचर्स के अंदर यही होता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन होती है, उसके अंदर आप ये कि आप घरों के अंदर थोड़े कम फ्लो वाले पाइप्स लगा दें जिससे पानी कम जाया हो, क्योंकि घरों में या बहुत सारे शॉप्स पे जैसे गाड़ियां धोने में, इस तरह की चीज़ों में पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो बजाय इसके कि पानी का फ्लो ज़्यादा और पानी का फ्लो ही कम कर दें. एंड इसके लिए हमारे पास एग्रीकल्चर इनोवेशंस भी है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ऐसा होता है कि पाइप्स जो होते हैं वो बिछा दिए जाते हैं खेतों में, और वो आहिस्ता 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 करके पानी रिस रिस के खेतों में एब्जॉर्ब होता जाता है, रादर देन के पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाए. और वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता पानी एब्जॉर्ब होता जाता है, पानी ज़ाया भी नहीं होता और पौधों को भी मिल जाता है. और लेज़र लेवलिंग, लेज़र को यूज़ करके उन एग्रीकल्चरल लैंड्स को जिसमें बम्प्स होते हैं उसमें पानी ज़ाया होने का खदशा होता है, तो आप एग्रीकल्चरल लैंड्स को लेवल अप कर दो और फिर पानी दो, तो इससे पानी कम ज़ाया होगा. एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के ऊपर हम बात कर चुके थे कि टेक्सटाइल सेक्टर में वाटर रीयूज हो जाता है लेकिन बहुत कम होता है. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का यही है कि एक तो आप ट्रीट करके रिलीज करें उसको पानी के अंदर ताकि वो हैजर्डस ना हो, दूसरा ये कि उस पानी को रीयूज करें किसी और पर्पस के लिए. इफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज बीइंग डीकंटामिनेटेड, इट शुड बी रीयूज्ड इन एग्रीकल्चर में. उसको अगर यूज किया जा सकता है तो आप उसको वहाँ यूज कर लेंगे. किसी और इंडस्ट्री को वो पानी चाहिए, उसके अंदर एक आध पैरामीटर को उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सो प्रोवाइड दैट वाटर टू देम. एंड देन वाटर एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम्स, और इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे बड़ा पानी का जो ज़ाया भी होता है वो होता है कूलिंग सिस्टम्स के अंदर. पानी जो रखने के लिए ना, कि पानी उन मशीनों को ठंडा रखने के लिए पानी इस्तेमाल होता है. और डिसैलिनेशन प्लांट्स जो कन्वेंशनल है हमारे पास, नॉट आर ओ एन एफ ओ, आर ओ है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पहले डिसैलिनेशन प्लांट जो सऊदीया में यूज हो रहे हैं जिसमें डिस्टिलेशन हो रही है, उसका भी ड्रॉबैक यही है कि उसमें कूलिंग जो सिस्टम है उसमें पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो उस इनएफिशिएंसी को कम कर दिया जाए, उसका कोई और इनोवेशन ला के उसका कोई और ऑल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया जाए इंडस्ट्री में. Or then we have policy regulation, which is very important. Again, the role of government extremely important and in each and every target of SDG. Then we have 6.5, that is integrated water resource management. जितने भी resources हैं जो हमारे पास खराब हो चुके हैं हम उन्हें restore करें. Restoration takes a lot of time, but जो हमारे पास existing resources हैं हम उनको manage करें और उनको ज़ाया होने से बचाएं. तो और दूसरा है कि वाटर इज ट्रांस बाउंड्री, इट हैज नो बाउंड्री. सो आप अपने वाटर को प्रोटेक्ट करें ताकि दूसरे मुल्कों के अंदर भी दूसरे मुल्क बेनिफिट हो सके इस चीज़ से. जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर रिवर्स का एक कोलैबोरेशन है जिसके अंदर उन्होंने पानी को कंजर्व और पानी को मैनेज करने की कोलैबोरेशन की हुई है. और पाकिस्तान के ग्लेशियर्स भी चाइना और पाकिस्तान ग्लेशियर्स वो करते हैं, शेयर करते हैं. सो दे हैव अ कॉपरेशन between them for the restoration and management of them as well. And river basin management में यही है कि इंडस सिस्टम है हमारे पास और इंडस बेसिन एग्रीमेंट है जिसके थ्रू रिवर्स कंजर्व किया जा रहा है, रिवर को रिवर पॉल्यूशन को कम किया जा रहा है और रिवर्स को मैनेज किया जा रहा है, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है. एंड then we have 6.6. Now I'm going to them because हमने इन पे बहुत सारी डिस्कशन कर ली है and we are running out of time as well.
and protecting the and restoring water related ecosystems, जिसमें रिचार्ज एक्विफर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो पानी जमीन के अंदर होता है उसे रिचार्ज कर दिया जाए आर्टिफिशियली, ताकि वो पानी ग्राउंड लेवल भी उसका ग्राउंड वाटर लेवल भी सही हो जाए और उसका जो इकोसिस्टम है वो भी रिस्टोर हो जाए। और वेटलैंड प्रोटेक्शन में जहाँ पानी मौजूद होता है साला साल या कुछ अरसे के लिए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए उस पानी को, जिसमें सॉल्ट रेंजेस का के इर्द गिर्द वाला पानी आ जाता है। और रिवर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में भी यही होगा, जो पानी रावी या चनाब का है वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें रिवर को रिस्टोर किया जाए, उसको उसका जो ओवर यूज है उसको कम किया जाए, उसको मैनेज किया जाए, उस पानी जो एग्जिस्टिंग वाटर है उसको मैनेज किया जाए, और जो रेन वाटर आएगा उसको स्टोर करने के लिए या उसको रिवर को रिफिल करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए, जिससे फिर वो पानी रिस्टोर होगा। और मैंग्रोव रेस्टोरेशन, मैंग्रोव सिंध में है जो फॉरेस्ट होता है, उसकी रेस्टोरेशन के लिए भी काम किया जाए, क्योंकि वो पानी में उगते हैं। सो उस पानी को भी रिस्टोर कंजर्व किया जाए और रिफिल किया जाए, उसकी मैनेजमेंट की जाए, ताकि हमारे दोनों लैंड और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों बच सकें। Then we have the challenges, as you have already discussed, that inequality is के cities और villages के rural and urban areas के दरमियान जो inequalities होती हैं, कि cities पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए prominent जगहों पे और बाकी जगहों को छोड़ दिया जाए। And population growth which is related to urbanization, जितना ज़्यादा population grow होगी और unmanaged population होगी, उससे फिर अर्बनाइजेशन जब इंक्रीज होगी तो वो बिल्कुल पुअरली मैनेज सिटीज और एरियाज को बनाएगी, जिसके बाद फिर हमारे लिए वाटर को मैनेज करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। स्कैर्सिटी एंड पोल्यूशन दोनों को ये बढ़ाएगी। एंड क्लाइमेट चेंज विच इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ अवर ईच एंड एवरी एक्टिविटी since 30 to 40 years, जो 30 to 40 years से एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट ये क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दिस। एंड पुअर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पुअर है, मतलब उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है वेस्ट वाटर के लिए। रिथिंग दे कि पानी वेस्ट है तो अब वो वेस्ट है, उसको आप दरिया, नालों या किसी और चीज़ में बहा दिया जाए। दे डोंट थिंक ऑफ इट कि नाले, छोटी नालियां नालों में जाके गिरती हैं और वो फिर आगे दरियाओं में, और वो दरिया मिलके समुंदर बनाते हैं, तो इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट। सो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट शुड बी रियली एफिशिएंट एंड होलिस्टिक इन पाकिस्तान, के वेस्ट वाटर को रीयूज कर दिया जाए, रिसाइकल कर दिया जाए। इफ द वेस्ट वाटर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हाउस होल्ड यूजेज, सो दे शुड बी इट शुड बी यूज इन द इंडस्ट्रीज। देन ग्लोबल के स्टडीज में है कि इथियोपिया, दैट इज अ कंट्री इन अफ्रीका, वहाँ पे जो वन वॉश प्रोग्राम है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिसेस जो पुअर थी उनको अच्छा किया गया है बहुत सारे रूरल और अर्बन एरियाज में। बांग्लादेश का जो सैनिटेशन प्रोग्राम है दैट इज़ रियली सक्सेसफुल, जिससे उन्होंने अपनी ओपन डेफिकेशन थ्रू कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, और उसमें जो मीडिया का रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था बांग्लादेश की इस कैंपेन को वो करने में, accomplish करने में। So role of each and every department is really important, either it's governance, environment or social. And then we have the global desalination, and that is we can have from Qatar, Saudi Arabia, Israel. They have installed different desalination plants जिसके through वो water treat scarce areas तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके पास पानी के ऐसे रिच रिसोर्सेज नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान जिनको ज़ाया कर रहा है। सो दे डू इज के वो अपने सी वाटर और को एज अ रिसोर्स यूज करते हैं, एंड दे कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। एंड लोकल उसमें यही आएगा साफ पानी, जिस प्रोजेक्ट जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि फिल्ट्रेशन प्लांट थ्रू आउट द रूरल कम्युनिटीज वो कर दिए जाए, इंस्टॉल कर दिए जाएं, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड गवादर जो तंजील ने बताया था, वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट इन गवादर, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ डिसैलिनेशन प्लांट इन गवादर, जो अभी हम बात कर चुके हैं कि वहाँ है लेकिन डिसैलिनेशन हो नहीं रही है। सो दूसरा है कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स at corporate level and at organizations level are really important for catering the water scarcity. And then we have PADS, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जो जिसमें सेफगार्ड और डेटोल का एग्जाम्पल हमारे पास आया था, जिसके थ्रू डिफरेंट NGOs एंड ऑर्गेनाइजेशंस अपने सैनिटेशन प्रोग्राम्स एंड हाइजीन प्रोग्राम्स को इंश्योर करा सकते हैं। And also a role of ESG. ESG is the not new, but a very interesting and emerging field in the landscape of environment, that is environment, social and governance, that these three domains are really deeply interconnected with each other.
ESG has a great role in water and sanitation. With environment, we can minimize the water wastage, pollution, and conserve our ecosystems. And with social, we can ensure the equality, the accessibility of clean water, and we can educate the community. Social is this related to the society, and with governance, we can have the regulations and different frameworks to strengthen our water policies and to strengthen our accomplishment of SDG 6. And then we have how companies and investors are driving the changes in water sector के ESG companies जो है वो बहुत ज़्यादा यूज करती हैं और कॉर्पोरेट लेवल पे वाटर जो है वाटर SDG 6 को अकम्प्लिश करने में कॉर्पोरेट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसमें ये है कि वो गवर्नमेंट के साथ ऐसा अलायंस बनाएं जिसके थ्रू वो अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर करें। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इसके अंदर एक बहुत बड़ा फील्ड है या एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें वो रिपोर्ट करते हैं कि अच्छा हम इतनी एमिशंस कर रहे हैं, हम इतना पानी यूज कर रहे हैं, हमारा फुटप्रिंट इतना है, तो हम इन्वायरमेंट के ऊपर इतना बर्डन है, हम इसको कम करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम ये इन्वायरमेंटल मैयर ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल मैयर्स में कुछ भी आ सकता है, रेस्टोरेशन आ सकती है, प्लांटेशन आ सकती है, या एग्रीकल्चरल रेस्टोरेशन आ सकती है। सो उसको वो फिर कंपनसेट इस तरह से करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में ये होगा कि एक कॉर्पोरेट लेवल पे उनका तमाम फुटप्रिंट, कार्बन का, वाटर का, एवरी स्टफ वो मैयर करेंगे और वो फिर बताएंगे कि हम इतने डिजास्टर्स हैं एनवायरनमेंट के लिए, इस एक्सटेंट तक अच्छे हैं और इस एक्सटेंट तक बुरे हैं। तो जो बुराई वाला पार्ट होगा दे विल mellow it out by something else, by doing something beneficial for the environment. And कॉर्पोरेट वाटर स्टीवर्डशिप के वो वाटर को वो करने के लिए वाटर रिसोर्सेज की रीयूज, रिसाइकल या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय हैविंग द लोकल पार्टनरशिप्स, जिस तरह कोका कोला ने किया था अफ्रीका के अंदर। कोका कोला इज एन इसराइली कंपनी नाउ, it would be controversial to mention it, but regarding its example, it's really इन्फ्लुएंशियल कि उसने अफ्रीका के अंदर अपने लोकल पार्टनरशिप्स वाटर के रीयूज, रिसाइकल और पोल्यूशन एरेडिकेशन करने के लिए अफ्रीका के वाटर SDG 6 को अकम्प्लिश करने के लिए उसका रोल बहुत अहम है। एंड देन दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन एंड we are left with our last 15 minutes in which you guys have any suggestions, any queries, you can ask. And also you have a take home activity in which you are going to calculate your water footprint। आप डेली कितना वाटर यूज करते हैं, किस चीज में कितना वाटर होता है और कितना वाटर यूज करते हैं हर एक्टिविटी में, और उसको कैलकुलेट करें। हाउ यू कैन कंजर्व दैट वाटर बाय योर सिंपल by adopting the simple habits and simple measures. So stage is open. Anyone, if you want to add any comment, suggestion, recommendation, yeah, any question, you are allowed to do that. Thank you. Sikandar, yes, Sikandar. Sikandar, you can unmute yourself, please. Mehmet, you can unmute yourself and say whatever you want to say. ओके तो मैं इसमें एक सजेशन ऐड करना चाहूंगी वर्चुअल वाटर का। लाइक हमने ये टर्म पढ़ी थी कि वर्चुअल वाटर वो होता है कि आपको बज़ाहिर तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक प्रोडक्ट के पीछे जो भी वाटर यूज़ हो रहा होता है उसकी पूरी लाइफ साइकिल में, उसे कहते हैं वर्चुअल वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम राइस खाते हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा राइस का ट्रेंड है, लेकिन राइस को पकने, बनाने से या उसको उगने से लेकर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो हम उसको कह सकते हैं कि वर्चुअल वाटर, तो राइस का वर्चुअल वाटर सबसे ज़्यादा है। इस तरह जो हम जंक फूड खाते हैं उनका भी वर्चुअल वाटर बहुत हाई होता है, और जो सबसे लो वर्चुअल वाटर होता है वो वेजिटेबल्स का होता है। तो मैं एक ये सजेशन ऐड करना चाहूँगी। देन मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि हम सी वाटर को यूज़ कर सकते हैं और कराची वगैरह करेंगे, लेकिन हमने पढ़ा है कि सी वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते, और सी वाटर में तो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन होती है सॉल्ट की और बाकी चीज़ों की। तो हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो सी वाटर को फ़िल्टर आउट करके उसको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें? थैंक यू। इसमें जो वाटर जो आपने पहली बात की थी, इसमें वाटर फुटप्रिंट में आपका जो इंडिविजुअल वाटर फुटप्रिंट होता है उसके ना सब वाटर फुटप्रिंट्स आ जाते हैं कि आपके मीट में कितना पानी है, आप जितना
कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो उसके अंदर कितना पानी यूज हो रहा है, तो आपको उन सबको कम करना होता है टू मूव टूवर्ड्स द वाटर कंजर्वेशन. सो नेक्स्ट इज के डिसैलिनेशन. अच्छा, डिसैलिनेशन में होता है कि जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, दे डोंट वर्क फॉर द डिसैलिनेशन, दे जस्ट वर्क फॉर द नॉर्मल वाटर, उसको फ्रेश वाटर में चेंज करते हैं. फॉर डिसैलिनेशन वी नीड different kind of technology, that is reverse osmosis and forward osmosis and distillation. Distillation में होता है कि वो जो उसकी distillation plant होता है उसमें पानी को evaporate करते हैं either from heating or cooling, और फिर उसका salt को अलग कर लेते हैं in solid form एंड उसका पानी अलग कर लेते हैं, उसको कंडेंस करके दे देते हैं. डिस्टिलेशन जो है वो सऊदीया में और मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन इसका ये ड्रॉबैक होता है कि उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ऑक्यूपेशनल हमारे पास रिस्क होता है, हैजर्ड है ये, और दूसरा इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. तो सऊदीया तो रिच कंट्री है तो वो अफोर्ड कर सकता है. बट रिवर्स ऑस्मोसिस में फिल्टर यूज होते हैं, उसमें प्रेशर के थ्रू आप पानी, सॉल्ट और पानी को अलग कर लेते हो, पानी अलग हो जाता है, सॉल्ट अलग हो जाता है, सो फिर पानी बिल्कुल क्लीन टू यूज होता है. और फॉरवर्ड ऑस्मोसिस में भी यही होता है. के लिए यूज कर सकते हैं, जी, यानी कि जो वाटर हमने डिसोलिनेशन किया है उसको हम कौन कौन से पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, या हम वो ड्रिंक, सूटेबल है? वो फिर हमारे पास बिल्कुल प्योर वाटर होगा ना, उसको फिर हमने जो पानी की ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर वो होता है, उसको ना वो भी करना होता है, न्यूट्रिएंट भी डालने होते हैं उसको, वो करने के लिए, पैरामीटर्स को लेवल अप करने के लिए. इंटरनेट जो डेवलप कंट्रीज है उसके अंदर यही होता है कि पानी को ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसको चेक करते हैं और उसके पैरामीटर्स को लेवलाइज करते हैं कि किस हद तक इसमें और कैल्शियम जाना चाहिए, किस हद तक इसमें और क्या चीज़ जानी चाहिए, तो वो उसको उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं. इसी तरह उस पानी को न्यूट्रिएंट रिच बनाया जाए और फिर उसके बाद उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे फॉर एग्रीकल्चरल एज वेल टू सम एक्सटेंट. And for simple usage, you don't want to, you don't need to have to add something in that water. You can use it as it is. Anyone thank else? Yes, Sikandar. Yes, Asad. मैंने आपसे ये पूछना था कि जो कुछ फार्मर्स यानी कि प्लांटेशन और वेजिटेशन ग्रोथ के लिए वेस्ट वाटर यूज करते हैं. वेस्ट वाटर प्लांट वेजिटेशन ग्रोथ के लिए तो ठीक है, लेकिन वो अनहाइजीनिक होता है और लोगों को वही चीज़ें आगे वेजिटेशन में दे रहे हैं, तो लोगों को पता भी नहीं होता, तो इसको कैसे हम कवर कर सकते इसमें ये है ना कि इसमें एजुकेशन, फार्मर्स की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस उसमें, कि जिस तरह बुशरा ने भी एक पॉइंट कहा था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप रूरल लेवल पे जाकर उनको एजुकेट करो कि आपने एग्रीकल्चर को किस तरह एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को किस तरह सस्टेनेबल बनाना है. उन्हें बताया जाए कि आपके इर्द गिर्द जो पानी है जो आप पौधों को डाल रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं कि बस ऐसी वेस्ट वाटर है और ये पौधों को कोई इनका कोई हार्म नहीं है, और उन्हें बताया जाए कि इनका नुकसान है, और एजुकेट किया जाए कि पानी का फिल्टर होगा, आप फिल्टर लगाएं और उस पानी को फिल्टर करके पौधों को दें, क्योंकि पौधे आगे कंज्यूम जानवर और इंसान ही करेंगे. तो एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू यू कैन मेक इट पॉसिबल. एंड ट्यूबवेल से देते हैं ना वो पानी, सो वास्ट लेवल पे, मास लेवल पे आप फिल्टर्स इंस्टॉल कर दें ट्यूबवेल्स पे, तो आप नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट लेवल पे ट्यूबवेल्स पे अगर फिल्टर्स इंस्टॉल कर दिए जाएं तो वो उससे भी काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा कि कंटामिनेटेड पानी पौधों तक नहीं पहुंचेगा. शुएब का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट हैवी मेटल्स कंट्रोल इमिटेड from textile industries, whether heavy metals penetrate in our body? Yes, heavy metals penetrate in our body and cause different diseases. They have जो lead है वो brain की development को, infants में, sorry, जो बच्चे हैं उनमें brain की development को hinder करता है. और pregnant women के लिए heavy metals contaminated water is really really bad. Fluoride जो है वो bone development के लिए बहुत बुरा होता है. और yes, माहम. Yes, Maham, you can unmute yourself, please. ओके. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हम इस कंटेमिनेटेड वाटर के सफाई के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करने का कह रहे हैं, लेकिन अब रिसेंटली हमको स्टडीज बता रही हैं कि पानी में प्लास्टिक के पार्टिकल्स भी आ रहे हैं. अब
मेरे ख्याल से इस इशू को अभी ही डिस्कस करने की ज़रूरत है, वरना इसमें ये होगा कि हम अभी पुराने जो कंटेमिनेटेड है उस पे काम कर लेंगे और आगे जाके जब सारे कंट्रीज में ये मसला बढ़ने वाला है, हम सबको पता है, तो उस वक्त कोई इनिशिएटिव लेना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हमको अभी से कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी काम करने स्टार्ट करना चाहिए जिससे ये भी चीज़ साथ ही कवर हो जाए। यस, ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर का काम ना, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अगर पहले आर्सेनिक नहीं था, आर्सेनिक उन्होंने डिटेक्ट किया, कोई 20 साल हो गए डिटेक्ट किए या 15 साल हो गए, कम अरसा हुआ है। सो पहले नहीं था, डजन मतलब इसका मतलब यही नहीं कि आप पुरानी प्रैक्टिसेस पे ही चलो और आर्सेनिक को रिमूव ना करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आप अपनी रिसर्च को अप टू डेटेड रखो और उसके हिसाब से फिर इनोवेशन को आप ऑल्टर करो। कि अगर प्लास्टिक्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक कैंपेन्स है कि प्लास्टिक को इरेडिकेट किया जाए, बट वो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक में चेंज हो जाता है। तो अब हमें ज़रूरत है ऐसी टेक्नोलॉजीज लाने की जो माइक्रो प्लास्टिक को फिल्टर आउट कर सके पानी से, या माइक्रो प्लास्टिक का कोई रिमूवल का जरिया बना सके। तो यस, यू आर राइट कि प्लास्टिक्स अब हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू आ गया है, जिसके लिए अब हमें काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी हमें इसमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। Thank you, ma'am. Anyone else? We are left with 8 minutes. If there is any question, you can ask or suggestion. Okay, so Daniel has a question. How can we how can we incorporate the integrated water resource management on the provincial levels? Of course, there on the provincial level, the government would devise a framework in which जो आपके सारे रिसोर्सेज होंगे उनको पहले वो जॉट डाउन करेंगे, उनके सारे इश्यूज, उनकी सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन, पॉल्यूशन एंड स्कैर्सिटी, एंड देन उनको कंजर्व करने के डिफरेंट वो होंगे मेजर्स को फिर वो एडवाइस करेंगे ऑन द प्रोविंशियल लेवल। और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर फिर उसका अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होगा उस इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को वो करवाने का, सक्सेसफुल बनाने का। यस, महक। Am I audible? यस। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन में। मेरा सवाल ये है कि हमारे सिटीज़ के अंदर जो है वाटर स्कार्सिटी और सैनिटेशन के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी था, लेकिन मेरा सवाल नॉर्दर्न एरियाज से रिलेटेड है। हम अपने घरों में बहुत ज़्यादा साफ़ और शफाफ पानी यूज़ करते हैं, स्प्रिंग वाटर। पानी का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे हर विलेज के ऊपर ग्लेशियर्स बने हुए हैं जो कि मतलब फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं और इस वजह से फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। और इन द लास्ट वीक 8 से 10 ब्रिज हमारे बह गए। सो अदर देन प्लांटेशन हम अपने कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट? क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी बंदा उधर आता है वो ये कहता है कि मतलब हम फंड प्रोवाइड करेंगे, इट्स अ ग्लोबल इशू लाइक दैट। सो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। देखिए, ग्लेशियर्स और फ्लड्स को जो वो है ना कंट्रोल करना, वी कैन नॉट कंट्रोल देम और पर्सनल लेवल ना, पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल पे हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर अनकंट्रोलेबल और ये रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है। दूसरा ये कि हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि इस यू आर राइट कि इस फ्लड से ना बहुत ज़्यादा वो भी होता है, वाटर कंटेमिनेशन हो जाती है। जो आप लोग के नॉर्दर्न एरियाज का साफ पानी है ना वो कंटेमिनेट हो जाता है, वो फिर पीने के लायक नहीं रहता। तो उससे उसमें ये होता है कि आप फिर लोकल लेवल पे अवेयरनेस देके फ्लड जाने से पहले पीछे हो जाएं या अपनी आबादी को पीछे कर लें। और दूसरा ये कि जैसे हीट वेव आती है और फ्लड्स, दो ऐसे फिनोमेना है जो हर साल समर्स में होते हैं, बट पिछले 3 साल से तो, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कोई इकदाम नहीं लेती है पहले से ही। अगर वो पहले से ही इसको जब फोरकास्टेड होता है कि इस साल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होंगी तो गवर्नमेंट या फ्लड्स इतने ज़्यादा आएंगे तो गवर्नमेंट इसके लिए पहले से इकदाम ले और इसमें बंद बनाए और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स करे, बट ऐसा नहीं होता। ऑन इंडिविजुअल लेवल यू कैन जस्ट sign the petitions, you can just use social media as a tool to raise your voice, कि वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाए एंड यू कैन एजुकेट द लोकल पीपल कि आप अपने आप को इस तरीके से सेफ रखें कि आप पीछे मूव हो जाएं या रिलोकेट कर जाएं कहीं पे उस मौसम के लिए पर्टिकुलरली। बट ऑन
the visual level, you can't control a flood. Okay, thank you. Thank you, Meher. Anyone else? We are left with 3 minutes. अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ ऐड हो सकती। सॉरी It's okay. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन रेज़ किया था सी वाटर से रिलेटेड, कि हम उसको पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसका क्या यूज़ हो सकते हैं इस तरह से। यहाँ जैसा कि अभी इन्होंने ग्लेशियर्स की बात की है, वो पीने के काबिल तो लाइक इनके एरिया का पानी है, लेकिन वहाँ पे कुछ इश्यूज हो जाते हैं जब वो मेल्ट होते हैं, तो वो इनको फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए कुछ जो हैं वो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सच एज़ अगर हम सी वाटर की बात करें तो उसको ना हम एनर्जी के सोर्स के तौर पे बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि वेव एनर्जी इसमें आ सकती है, टाइडल एनर्जी आ सकती है, और इसके अलावा सबसे मेन जो है इसमें अच्छी जो आती है वो आती है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है ना, ये इसमें आ जाती हैं। इसके बड़े ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लाइक इसमें एक तो जब हम इसमें वर्क कर रहे होंगे तो इसमें यूथ हमारी को बहुत ज़्यादा जॉब मिलेगी। जब जॉब मिलेगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और इसके साथ कार्बन इमिशन रिडक्शन जो है ये बड़ी अच्छे तरीके से होती है। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन जो है ना वो इसमें अच्छा एक इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर इनकी बात पे आए, ये जो जिन्होंने अभी ग्लेशियर्स की बात की, तो इसमें तो एक तो देखें वाटर स्टोरेज इसका एक सबसे जो है ना वो कन्वीनियंट हल है, जिसमें अगर एज ए यूथ ये पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो ये है कि ये अपने गांव या जो एरियाज़ ज़्यादा अफेक्टेड हैं उन एरियाज़ में जो हैं ये कह लें जिस तरह बिल्कुल इनिशियली इस तरह से किया जाए कि जो डायरेक्ट जो रास्ते आते हैं ना वहाँ पे ये पानी के लिए रास्ते बना छोड़ें, जैसे छोटी छोटी नदियाँ कह लें, या इस तरह का जो एक प्रोजेक्ट हो सकता है। इसमें भी अगेन जब आप एक बार इनिशिएटिव ले लेंगे तो ऑब्वियसली हुकूमत को पता होगा कि हमारे बंदे जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं वाटेवर, उस वक्त आप हुकूमत को एंगेज करना आसान होगा, उस वक्त फिर जॉब्स क्रिएशन होगी। इसके अलावा इनका जो है वो रिक्रिएशनल टूरिज़्म वगैरह के लिए ये चीज़ें तो इसमें आ जाती हैं, लेकिन जो इसका हल है ना वो एक मेरी तरफ से ये हो सकता है। Thank you, Bushra. Thank you. Valuable suggestion. And with this, we have to end our session because we have reached 8:30. So thank you so much, all of you. Thank you so much, Danyal and Burak Association, for giving me this opportunity for training these young individuals. And also thank you everyone जिन्होंने contribute किया या जिन्होंने participate किया. Thank you so much. And if I was mistaken at any point, you can tell me, and if there is any suggestion for me, you can always reach me out on my LinkedIn profile. Thank you so much. Once again, thank you so much, Aiza Api, for coming and being the trainer along with the speaker, ताकि हम लोगों को इतना सारा SDG 6 के ऊपर ट्रेन किया है, एजुकेट किया है। आई एम रियली थैंकफुल, और आई एम रियली होपिंग कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे ये सारे के सारे इस नॉलेज को मजीद आगे फैलाएंगे और इसको इनकॉर्पोरेट करके दे विल बी कैरिंग आउट देयर ऑन प्रोजेक्ट्स ऑन SDG 6 अंडर योर सुपरविजन, अंडर योर गाइडेंस इफ दे विल बी लीडिंग इट। और guys, I will be sharing Miss Aiza's LinkedIn on the WhatsApp group. So thank you so much, everyone, and thank you so much, Miss Aiza, once again. Or Thank you. for tomorrow's session, Miss Aiza will be here with us again as our speaker. So अगर कल भी किसी को कोई क्वेश्चन हुआ रिगार्डिंग SDG 6 जो आज वो नहीं पूछ सके या नहीं पूछ सकी, तो आप कल भी पूछ सकती हैं या पूछ सकते हैं। और मजीद जो इन्होंने होमवर्क दिया हुआ दैट होम टास्क शुड बी डन, और वी कैन कम अप विद सम ऑफ एग्जांपल्स के हम लोगों ने इस चीज को इस तरीके से देखा, देन वी कैन मजीद डिस्कस in tomorrow's session before the start of the session. Thank you so much, everyone, and Khuda Hafiz. Have a good night. Thank you.